if we see, bankers, in addition to doing conventional banking of accepting deposits and lending money, they are also the implementing agencies for all the schemes that are formulated by the government. हम लोग as citizens, if we see any announcement that is made by the government ने कोई भी relief देनी है, तो it has to be channelized through the banking system. Government decided that we will come up with a direct benefit scheme. Government decides that we are going to pay pensions under the social security system. These are all actually effectuated by the banking sector. Recently, we have been facing very tough times. The entire economy, global economy, is facing a lot of challenges, and the biggest challenge is of reviving businesses. So, for that also, the government of India, in its stimulus package, it has again relied on the robust banking system of the country, and recognizing that MSME sector plays a very important role in revival of the economy. The government has announced several measures by which the banks can provide relatively easier credit to the MSME sector. Now, as chartered accountants, we are basically the, as I say, the foot soldiers of the economy. We are there to interpret the policies and to work with the bankers and with the other officials of the government, so that whatever are the policies, they are implemented in the best possible manner, and the targeted relief is always available. So with this background, we have organized today's webinar, and I am grateful to our senior bankers who have agreed to be there and share their wisdom, their knowledge, their experience, and clear the doubts that we have and we may have, so that we can assist our clients and people from the MSME sector in deriving the maximum advantage of the relief package that has been announced. I'll not take much of the time now, and I'll request our moderator for this program, CA Dinesh Jain ji, to please take over. Dinesh ji. Thank you, Vimal sir. Thank you very much. Respected Vimal Kishore ji, Chairman, Dehradun branch. Rajneesh Agrawal ji, Vice Chairman, Dehradun branch. Rajesh Gupta ji, Secretary, Dehradun branch. Jasmeet ji, Treasurer, Dehradun branch. Arshad Gupta ji, Chairman, Sikasa, Dehradun branch. Himanshu Sharma ji, Executive Member. Rajat Sharma ji, Past Chairman, Dehradun branch. Sri B.S. Saini ji, DGM, SBI. Sri Parutosh Rayada ji, AGM, SME, SBI. Anup Sharma ji, DRM, BOB. And respected colleagues. सबसे पहली बात तो ये है कि मैं भी अब तो अपने आप को देहरादून का फील कर रहा हूँ, और वर्चुअली हम यही मानेंगे कि देहरादून में बैठा हुआ हूँ. इस कोविड की ये भी एक देन है. कोविड की तकलीफें बहुत आई है, लेकिन कोविड की दिया भी बहुत कुछ है उसने, और कि हम वर्चुअली अपने आप को ये फील कर रहे हैं कि मैं देहरादून बैठा हुआ हूँ या आप जयपुर बैठे हुए हैं. आप इसको कुछ भी मान लीजिए, दोनों तरफ से हम मान के चलेंगे कि हम बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं. कोविड की वजह से चीजें बहुत सारी दुनिया में चेंज हो चुकी है और बहुत कुछ चेंज आने वाला है. सबसे जो मेरा बड़ा मानना है, और मैं इसको मैं खुद ही फील कर रहा हूँ, कि जो पॉजिटिविटी है, वो पॉजिटिविटी आपको कोविड से बाहर निकालेगी. काढ़ा पीना या दवाई खाना या योगा करना वो अपनी जगह पे है, लेकिन अगर इन सबको किया जाए विद फुल पॉजिटिविटी, शायद तो ही हम इस कोविड से बाहर निकल पाएंगे. बिना पॉजिटिविटी के हम कोविड से बाहर निकलना असंभव है. फिगर्स डेली बढ़ते जा रहे हैं सब जगह पे. मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट यही है, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तब तक आप अपनों का ख्याल नहीं रख पाएंगे. जब आप अपनों का रखेंगे तो वो कंटिन्यूस आगे चेन बढ़ेगी. अभी 4 महीने शायद मोटा मोटी हो चुके हैं, 4 महीने पूरे हो चुके हैं. 21 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ था. कोई बात नहीं, 4 महीने और निकल जाएंगे. लेकिन सारे धर्मगुरु भी यही कह रहे हैं, सारे जो बड़े बिजनेसमैन भी यही कह रहे हैं कि 2020 जीने का है, इसको आराम से निकालें. और ये आराम से निकल गया तो 2021 और आगे की लाइफ हमारी होगी. और जब से ये चाइना का जो कोल्ड वार चालू हुआ है, तब से हमको लग भी रहा है कि बहुत सारी इंडस्ट्री चाइना से यहाँ शिफ्ट होने वाली है. और जब वो इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट होगी, बट नेचुरली हमारा बिजनेस बढ़ेगा. मेरा ये मानना है कि 20, 25, 30 साल या 15 साल की प्रैक्टिस के बाद यदि हम 6-8 महीने अपने परिवार बहुत इजीली नहीं रख सकते,
तो शायद 15-20 साल की प्रैक्टिस करके भी हम कर क्या लेंगे। तो आप बहुत कूल रहिए एकदम, मैं भी रह रहा हूँ और आप अपने आप को रखिए, क्योंकि वो कूल रह के ही शायद हम इस समस्या से बहुत इजी वे के अंदर बाहर निकल जाएंगे। अब जिस चीज के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं दैट इज स्टिमुलस पैकेज। जैसा कि आपको ध्यान है, गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर कोविड के बाद में बहुत सारे मेजर्स उठाए हैं, बहुत सारे स्टेप उठाए हैं। उसने टोटल मिला के 20 लाख करोड़ का पैकेज इन्होंने दिया था। उस 20 लाख करोड़ में से 4,70,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो थ्रू लोन एमएसएमई को या ट्रेडिंग कंसर्न को बटने। इसमें से 1 जो 3 लाख करोड़ रुपए है, 3 लाख करोड़ रुपए तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम जो गवर्नमेंट ने दी है। यहाँ पर भी कुछ मिथ है, भी हम क्लियर करेंगे कि ये एमएसएमई के लिए नहीं है। 3 लाख जो करोड़ रुपए है ये है बिजनेस एंटरप्राइजेस, यहाँ क्लियर वर्ड मेंशन है बिजनेस एंटरप्राइजेस। 3 लाख करोड़ रुपए इन्होंने दिया है। इस 3 लाख करोड़ की जो कंडीशन है अभी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर अपन। उसके अलावा इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए दिया है स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए। आरबीआई इस स्कीम को आउट कर चुकी है। बैंकों के थ्रू ये स्कीम आउट होने मुझे लग रहा है 1 दिन लगेंगे, शायद इनके ऊपर यहाँ पर पॉलिसी बन रही है और विद इन 1-2 डेज ये स्कीम 100% मार्केट में बाहर आ जाएगी। 50,000 करोड़ रुपए फंड्स ऑफ फंड्स, फिलहाल ये स्कीम मार्केट में नहीं आई है, लेकिन 10-5 दिन के अंदर जैसा मैडम के कंटिन्यू ट्वीट भी आ रहे हैं ये बिल्कुल मार्केट के अंदर आ जाएगी। 30,000 करोड़ रुपए दिया एनबीएफसी के लिए, ये मार्केट में आ चुकी है और इसके अंदर वर्किंग भी स्टार्ट हो चुकी है। काफी डिस्बर्समेंट भी इसके अंदर हुए, करीबन 8-9,000 करोड़ रुपए डिस्बर्स हो चुका है इसके अंदर से। एक 45,000 करोड़ रुपए और आना है। 45,000 करोड़ रुपए जो आना है ये आना है लोअर रेटेड एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए। और 25,000 करोड़ रुपया स्वामी फंड के अंदर जो स्ट्रेस बिल्डर्स हैं वो ऑलरेडी दिसंबर 19 में आ चुकी है और इसके अंदर करीबन 8-9,000 करोड़ रुपए डिस्बर्स यहाँ पर भी हो चुका है। अब हम बात करते हैं 3 लाख करोड़ रुपए की। सभी जो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट साथी हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि सर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2 सेंस के अंदर है और इनफैक्ट 3 सेंस के अंदर कह लीजिए आप। नंबर 1, यदि हम हमारे क्लाइंट को हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर फंड को लेने के अंदर, तो हमको प्रोफेशनल फीस मिले या नहीं मिले, सबसे इंपॉर्टेंट है यदि हमारा क्लाइंट रह गया, यदि हमारा क्लाइंट सर्वाइव कर गया, तो जो आगे की हम आईटीआर की बात करें या आगे की जीएसटी रिटर्न की बात करें या आगे की कंपनी रिटर्न की बात करें, तो क्लाइंट सर्वाइव करेगा तो ही आगे की आईटीआर, जीएसटी या कंपनी रिटर्न की बात कर पाएंगे, अदरवाइज हम वो का बात नहीं कर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, इंपॉर्टेंट जो चीज है, सर मैं तीनों बैंकर से भी कहना चाहूंगा सर, जो अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति, आदरणीय राष्ट्रपति थे सर, वो ऑलरेडी हमको कह चुके हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। तो सर हमारा एक ये रियल हिस्सा होगा पार्टनरशिप बिल्डिंग बनने का कि यदि हम 5, 10 या 15 या 20 एसएमई यूनिट को रिवाइव कर पाए, उनको सर्वाइव करने में हमने मदद कर दी, तो शायद ये हमारा सच्चा पार्ट होगा पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग बनने का। वन मोर थिंग जो इंपॉर्टेंट आइटम है इसका, इस स्कीम की जो लास्ट डेट है वो है 31 अक्टूबर या 3 लाख करोड़ जो पहले खत्म हो जाएंगे। जो लेटेस्ट फिगर अपडेटेड है वो है कि इसमें से सिर्फ अभी 1,30,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। एग्जैक्ट फिगर है 1,30,491 करोड़ सैंक्शन हुआ है सिर्फ, एंड आउट ऑफ दिस ओनली 82,065 करोड़ डिसबर्स हुआ है। अब ये स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमारे लिए अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले कह चुकी है कि इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि जो 3 लाख करोड़ या 31 अक्टूबर जो पहले आ जाएगी। बट नेचुरली हमारे यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हम लोग लास्ट डेट का वेट करते हैं, हो सकता है लास्ट डेट नहीं है उससे पहले ये फंड खत्म हो जाए, तो हमको हमारे क्लाइंट्स को एजुकेट करना है कि वो इस फंड्स को ले, क्योंकि ये लास्ट संजीवनी है। इस फंड को लेके इसका प्रॉपर यूटिलाइज करें। अगर इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन उन्होंने किया तो वो खुद भी संकट से बाहर निकलेंगे और हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है ये भी कहीं ना कहीं लाइन के ऊपर आएगी, जो शायद कहीं आ चुकी है। इस पर्टिकुलर स्कीम की जो मेन 3 कंडीशन है वो है 29 फरवरी 2020। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 फरवरी 2020 को जो आपका आउटस्टैंडिंग है ये देंगे उसका 20%, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन कि आपका टोटल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम डिफरेंट बैंक या डिफरेंट एफआईज 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन, फाइनेंशियली 19-20 के लिए आपका टोटल टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये टर्नओवर आपकी अंडरटेकिंग के ऊपर ही लिया जा रहा है, इसमें कोई सीए सर्टिफाइड या ऑडिटर बैलेंस शीट नहीं चाहिए। आप जो प्रोविजनल बैलेंस शीट दे रहे हैं उस आपके अंडरटेकिंग के ऊपर ही बैंकर्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। 100 करोड़ से ऊपर आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए और 25 करोड़ से ऊपर आपकी आउटस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। बीएल सैनी सर, बीएल सैनी सर, सर आवाज आ रही है आपकी? सर सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सुन पा रहे हैं।
आपको आ रही है? बीच में ब्रेक हो रही है आवाज। सर सबसे जो इम्पोर्टेंट सर चीज है कि सर 2 बार मोरेटोरियम आया, मोरेटोरियम 1, मोरेटोरियम 2। सर मोरेटोरियम 2 तो मैक्सिमम लोगों ने अवेल किया है, लेकिन मोरेटोरियम 2 शायद लोगों ने उसको कम अवेल किया। सर आप क्या इसको फील कर पा रहे हैं, किस तरह जा रही है, क्या हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है सर? क्योंकि डे टू डे बेसिस के ऊपर आप क्लाइंट से बहुत मिल रहे हैं, तो सर इसको किस तरह फील कर रहे हैं? क्या हम सर वापस नॉर्मल जो सिचुएशन है उस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या नॉर्मल हुई नहीं है सर, लेकिन हम क्या नॉर्मलाइजेशन तरफ बढ़ रहे हैं क्या सैनी सर? सर मैं सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सैनी सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। विमल सर, सैनी सर की आवाज नहीं आ रही ना? फॉर इनवाइटिंग मी। विमल सर, सैनी सर की आवाज नहीं आ रही ना? अभी मैं एक फिगर बोली, आवाज नहीं क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ रही सर थोड़ा आप अगर मास्क हटाएंगे तो शायद बेटर। थोड़ा प्लीज थोड़ा पास में बोलिए सर, थोड़ा सा। Sir, I request Sunny sir to switch off their video because their connectivity is low. वीडियो ऑफ कर दें तो ऑडियो शायद प्रॉपर आ जाए। सर आप बोलिए सर, सैनी सर आप बोलिए। हाँ, अभी आपको आवाज आ रही मेरी? यस सर, अब आ रही है, परफेक्ट प्लीज। Many thanks for inviting me in this town hall webinar. First of all, second thing sir, आपने एक फिगर बोली अभी 3 लाख करोड़ की 31 अक्टूबर तक होगा, बट वी कांट वेट सर, 31 अक्टूबर इज टू लॉन्ग। और आपने एक और फिगर बोली 1 लाख करोड़ समथिंग लाइक, उसमें मैं चाहूंगा 13491 सर। यस सर। हाँ 130, उसमें मैं चाहूंगा अगर आपके पास फिगर हो कि व्हाट इज द शेयर ऑफ एसबीआई। आई थिंक एसबीआई इज द लीडर। अगर आपके पास उसकी बाइफरकेशन है तो यू कैन बेटर एक्सप्लेन। इन द उत्तराखंड, इन देहरादून ओनली, मैंने आई मोर देन 6000 जो केसेस हैं हम कर चुके हैं आज की डेट में। वी हैव सैंक्शनड अंडर जी। सर एक सेकंड आपको डिस्टर्ब करूंगा सर, मैं इसका फिगर दूंगा सर। ये जो 130 करोड़ का सर जो फिगर है, इसमें सर जो नेशनलाइज्ड बैंक का पीएसयू का फिगर है इट इज 71818, और जो प्राइवेट बैंक है सर इट इज 58673। मतलब मोटा मोटी सर जो पीएसयू है फार बेटर देन प्राइवेट बैंक्स। हाँ सर, पीएसयू आर फार बेटर। आई थिंक अगर इसको फर्दर बाइफरकेट आप करते तो एसबीआई का मेजर चंक है इसमें सर। इवन इन उत्तराखंड वी हैव गॉट ए मेजर चंक। तो इसमें हमने, मैं आप सभी सीए से रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज यू आर बैकबोन ऑफ अवर बैंकिंग, अवर इकोनॉमी जो भी है, कि प्लीज हमें हेल्प कीजिए। हम सभी एलिजिबल कस्टमर्स को कॉल भी कर रहे हैं। देहरादून, मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद देहरादून। तो मैं अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर कहीं कस्टमर अवेयर नहीं है, उन कस्टमर्स को हमारे पास लाइएगा, हमें बताइएगा। मेरा फोन नंबर आपके पास है, बिकॉज मतलब आई एम रीचिंग टू द कस्टमर्स। मैंने खुद अपने फोन से कॉल करा है, ईमेल की है। और सबसे बड़ी बात है कि एसएमई डिलीवरी के लिए मिस्टर परितोष फुल टाइम एजीएम हमने देहरादून के लिए अपॉइंट किया है। ही इज ए नोडल ऑफिसर हियर, क्योंकि एज ए एसबीआई हम बहुत फोकस कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग कि पहले क्या होता था, जो एक हमारा परसेप्शन है कि सभी को एसएमई की नॉलेज नहीं होती। सीएस आर प्रोफेशनल, उनको तो बहुत नॉलेज रहती है एज ए बैंकर। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन उत्तराखंड वी हैव मेड स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, और देहरादून में राजपुर रोड ब्रांच है दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू एसएमई सेक्टर। तो इसमें सर मैं यही कहूंगा, आप सबको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमें हेल्प कीजिए, हमारे कस्टमर्स को हेल्प कीजिए। टुगेदर वी कैन मूव। तो बाकी अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि मिस्टर परितोष रायजादा जी हमारे यहाँ पे नोडल ऑफिसर है। इन केस ऑफ एनी एसएमई क्वेरी आप डायरेक्टली उनको भी कॉल कर सकते हैं। तो थैंक्स सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर हम भी ये बोलते हैं सर कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ब्रिज, चार्टर्ड अकाउंटेंट आर ब्रिज बिटवीन द बैंकर एंड क्लाइंट। और सर हम कंटिन्यूअस, हम हैंड टू हैंड मिला के जो काम कर रहे हैं। और सर एक चीज और बता, अपडेट दूं सर आपको मैं कि सर वर्ल्ड के अंदर सिर्फ सीए एक ऐसा प्रोफेशन है सर जो क्लाइंट की ग्रोथ से ग्रो करता है सर। बाकी सारे प्रोफेशन वो हैं जो क्लाइंट की तकलीफ में ग्रो करते हैं, लेकिन सर हम लोग ऐसे हैं जो क्लाइंट की ग्रोथ में ग्रो करते हैं। शायद सर यही एक ऐसा प्रोफेशन है सर जो पहले काम करता है बाद में फीस मांगता है। बाकी सारे लोग वो हैं जो पहले फीस मांगते हैं बाद में काम करते हैं। हम लोग सर पहले काम करते हैं और क्लाइंट की इनकम के बाद हम लोग सर उनसे फीस मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अनूप शर्मा जी, सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस। आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस सर, यस सर। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल सर आपसे मैं पूछूंगा सर, चूंकि हम बैठे हैं देहरादून के अंदर, और सर देहरादून के अंदर जो मेन जो बिजनेस सर वो है टूरिज्म।
और इस Yes. कोविड के बाद सर वो टूरिज्म में बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। नो डाउट Yes. आगे आने वाली स्थिति खराब नहीं है, लेकिन प्रेजेंटली अफेक्ट हुआ है। अब सर इसमें बहुत सारी चीजें हो गई। वो होटल्स जो रनिंग में थी, वो होटल्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो होटल जो काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन रनिंग में आने से पहले ही ये कोविड वहां पर आ गया। क्योंकि ये जो सीजन था, पूरा गर्मी का सीजन, ये पूरा उनके लिए खराब हो चुका है। सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि किस तरह आप उनको हेल्प आउट कर पा रहे हैं, किस तरह ये लोग इससे बाहर निकल पाएंगे? अनूप सर। Okay. Thank you, Jensam. First of all, I would like to thank you a lot for inviting me in this webinar. I am feeling very privileged. And as we all of us are aware that the impact of COVID is, you can say, very diversified. It has affected almost all the fields, whether it is a tourism, our supply chains, linkages, even hospitality, drugs, pharmaceuticals, logistics, whatnot. It has affected each and every field. And now, as far as you have asked about the tourism and the projects or hotels which were under construction or which were not completed. So now, in under COVID, as far as my bank is concerned, we are financing, we are giving this 20% to all the eligible accounts. Whereas in 2-3 cases just now, the hotels or the projects which were going on and they were requiring more fund, like even their demand was not met after sanctioning 20%. So we have done restructuring type of things for them. We have given more enhancement, and banker is always, you can say, this is at present scenario. This is a situation banker has to come forward. It is like a service of a nation. And moreover, like you have said, that CA is the person who always strives to that his clients grows. Similarly, bank, because अगर हमारा कस्टमर ग्रो करेगा, हमारा तो उसमें पहले से ही इंटरेस्ट रहता है कि वो जितना ज्यादा ग्रो करे उतना ज्यादा हमारे बैंक को फायदा है, उतने क्लाइंटेंस उसके थ्रू, उसकी सप्लाई चेन, उसके और जुड़े हुए लोग वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि बैंकर्स इन देहरादून, एज फार एज बैंक ऑफ बड़ौदा इज कंसर्न, वी आर कैटरिंग every need of our borrowers. थैंक यू सर। पारितोष सर, सर प्लीज थोड़ा सा, सर आपका चेहरा क्लियर नहीं आ रहा। यस सर। पारितोष सर, सर प्लीज अनम्यूट, सर प्लीज अनम्यूट। यस सर, सर आवाज आ रही है ना? अनम्यूट कर लिया मैंने। हाँ सर। सर ये आ रही है। सर ये मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा सर आपसे, क्योंकि सर मेरे भी बहुत लोगों से वहां कनेक्ट है सर, और सर भी बहुत तकलीफ है सर। नो डाउट सर मोरेटोरियम मिल गया उनको, और मोरेटोरियम भी जो एक्सटेंड करेगा सर ये अप टू 31 अगस्त है। अब सर जुलाई में हम बैठे हैं, अगस्त अगले महीने आ जाएगी सर। जिनका लोन ईएमआई बेस है उनकी सर वो नेक्स्ट जो ईएमआई है वो लास्ट मोरेटोरियम की, आगे मोरेटोरियम एक्सटेंड होगा या नहीं होगा सर वो तो गवर्नमेंट को मालूम है, आरबीआई को मालूम। लेकिन सर तकलीफ बहुत है सर। आप सर किस तरह मानेंगे कि वो लोग किस तरह से बाहर निकलेंगे इससे? क्योंकि फिगर्स जो कोरोना के हैं वो डेली बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। शायद हम अभी तो 3rd नंबर पे हैं, जल्दी 2nd नंबर पे आ जाएंगे अगर स्थिति यही रही और कंट्रोल नहीं कर पाए तो सर किस तरह सर ये जो क्योंकि सर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है सर वो अकेला अफेक्टेड नहीं है, उससे जो रिलेटेड लोग हैं जो उनको सप्लाई कर रहे हैं वो भी अफेक्टेड है, जो टैक्सी वाला है वो भी अफेक्टेड है, जो वहां पर जो खाना बना रहे वहां लोग हैं वो भी अफेक्टेड है, जो उनको फूड सप्लाई कर रहे हैं वो भी अफेक्टेड है, जो उनके यहाँ लॉन्ड्री का काम करता है वो भी अफेक्टेड है। मतलब देयर आर सो मेनी पीपल जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे अटैच्ड है। तो सर आप इस समस्या को सर किस तरह देख पा रहे हैं? परतोष सर। गुड इवनिंग सर। आपका क्वेश्चन मुझे जो जितना मैं समझ पाया हूँ, आज ही स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है दैट पीपल पिलग्रिम्स फ्रॉम अदर स्टेट्स they will also be permitted to come to Uttarakhand and visit all the चार धाम। तो उसमें उनकी खाली एक ये कंडीशन है कि उनके पास 72 आवर्स पुराना कोरोना चेकअप का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड लैब, एंड दे विल नॉट हैव टू अंडरगो दैट 7-day क्वारंटीन जो कि आज अभी तक एप्लीकेबल था। सो इन दिस सिनेरियो आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे जैसे इनके पास ये न्यूज पहुंचेगी कि उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने ये रिलीफ दिया है पिलग्रिम्स को, आई एम वेरी श्योर
people will start coming in, क्योंकि flights तो start हो गई हैं, even अहमदाबाद, हैदराबाद की भी flight start हो गई हैं last week में. So I'm very sure not only high net worth individuals but the common people जिनकी श्रद्धा है इन 4 धामों में, they will start coming in. जैसे जैसे लोग आएंगे, I am very sure hotels, restaurants, taxis और जो हमारी जो यात्रा वाला जो रूट है उस पे ग्रेजुअली एक्टिव कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रो करेंगी. थोड़ा ये जरूर है कि मॉनसून अभी पीक करने वाला है, शायद नेक्स्ट 15-20 डेज नहीं है, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ अगस्त प्रोबेबली रक्षाबंधन के बाद I think we will see a lot of tourists coming in, and I think this will be the I would say it would be act as a booster for the tourism industry. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर. सर मुझे भी सर बेसिकली सर आप तीनों की बातों से यही लगा सर, हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं और जिस तरह से भी उस यूनिट होल्डर को हेल्प चाहिए होगी हम लोग हेल्प आउट कर रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि हमारी हेल्प के पीछे, उस होप के पीछे ही वो जिंदा है सर. मेरा भी सर, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट यही है. सैनी सर मैं कंटिन्यू क्वेश्चन आपसे करूंगा सर इसके अंदर, क्योंकि सर मेरा ये मानना है सर 2 तरह के लोग हो गए सर. एक वो जिन्होंने सेकंड मोरेटोरियम नहीं लिया, एक वो लोग सर जिन्होंने दोनों मोरेटोरियम लिए. तो सर जिस तरह से न्यूज कंटिन्यू मार्केट के अंदर आ रही है, शायद गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोच रही है, क्योंकि सर जिस आदमी ने या जिस यूनिट ने कंटिन्यू 6 महीने का मोरेटोरियम ले लिया, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा सर 7वें महीने में आके वो सब उस 7वें महीने की ईएमआई का पेमेंट करे. नंबर 1. नंबर 2, वो जो 6 महीने का हमने मोरेटोरियम दिया था, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एफआईटीएल, तो ही हैज टू पे 1 पोर्शन ऑफ दैट एफआईटीएल. नंबर 3, उसको जो उसके घर को भी पालना है, साथ में जो उसके जो लोग लगे हुए हैं, तो उसके सैलरी वाले पर्सन होंगे या जो उसकी लेबर होगी, उसको भी पालना है. तो सर कहीं ना कहीं सर मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है सर, आप लोग अपर पोजीशन में बैठे हुए हो, आपको सर गवर्नमेंट को या आरबीआई को ये भेजना पड़ेगा कि मोरेटोरियम एक्सटेंड करे या नहीं करे, लेकिन वो लोग जो भयंकर तकलीफ में है उनके लिए कोई ना कोई एडिशनल मेजर शायद हमको लेना पड़ेगा. सैनी सर. वेरी राइट. मुझे लग रहा है कि इस मुद्दे के ऊपर समटाइम्स अराउंड 7-8 डेज बैक डीएफएस ऑफिस में मेरी बात हुई थी. सर थोड़ा माइक के पास बोलिए सर प्लीज, थोड़ा माइक के पास बोलिए सर प्लीज. आवाज आ रही सर? यस सर, यस सर. प्रॉब्लम है. नो ये मल्टीपल अराउंड 7-8 डेज बैक मेरी एक डीएफएस में भी दिल्ली बात हो रही थी. जो आपने पॉइंट बोला ना, वेरी लॉजिकल पॉइंट. तो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू देम, और मुझे लग रहा है कि वो भी सोच रहे हैं इसी लाइंस के ऊपर, इस लाइंस के ऊपर आप कह रहे हैं ना कि डेफरमेंट में भी एक्सटेंडेड. अगर डेफरमेंट एक्सटेंड नहीं करेंगे तो देयर मे बी प्रॉब्लम. एक्सेप्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर समथिंग लाइक द मेडिकल सेक्टर एंड अदर सेक्टर. बाकी सेक्टर तो आर बैटली. इसका जो फीडबैक है हम नोट कर रहे हैं. हम वहां ऊपर फ्लैग करेंगे जो भी आपके रेलेवेंट पॉइंट्स हैं. वी विल आल्सो ट्राई टू फ्लैग, और whatever we as SBI or as a banker or as SLBC we will like to do, we will do. ऐसा कोई नहीं है. we are seriously taking your points, और आपका पॉइंट बड़ा एक लॉजिकल पॉइंट है. इसमें मुझे एक और चीज आपसे थोड़ा डिस्कस करनी थी कि ये उत्तराखंड में ना, आई वाज जस्ट विजिटिंग हिली एरियाज, वहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हुई है. रिवर्स माइग्रेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री लोग आए हैं यहाँ पे, तो दे आल्सो नीड सम फाइनेंशियल हेल्प. तो उसमें मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी. आई मेट एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म हियर. मैंने उनको बोला था कि सर जो रिवर्स माइग्रेट, दे आर वेरी स्किल्ड पर्सन. मैं पीछे गया था किसी एरिया में, शायद पौड़ी की तरफ गया था, टिहरी की तरफ. तो डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्रीज एंड अब्रॉड आल्सो, तो कुछ लोग आए हैं, दे आल्सो वांट टू एस्टैब्लिश देयर वेंचर्स. तो उस डायरेक्शन में भी हम काम कर रहे हैं. और मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा कोई प्रपोजल अगर आपके पास रहेगा तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए. मेरे नियर बाय ब्रांच को कीजिए, मुझे कीजिए, या परितोष जी को कीजिए. जो एमएसएमई में ऐसे ही हम इकट्ठे मिलकर बूस्ट कर सकते हैं. तो बाकी आपका पॉइंट रेलेवेंट है सर. We will escalate. थैंक यू वेरी मच सर. सर यही कंसर्न सर, यही पॉजिटिविटी आपसे चाहिए सर. ये जो पॉजिटिविटी है सर, यही लेके हमको आगे जाएगी. मेरे ख्याल से हमारे पास इससे बड़ी एसेट और इससे बड़ी अभी दवाई कोई नहीं है कि सर हम पॉजिटिव रहे. और बैंक वाले कंटिन्यू ये बोलते रहे ना, क्योंकि सर हम भी सर कंटिन्यू लोगों को ये बोल रहे हैं सर कि बैंकर्स आर रियल इकोनॉमिक वॉरियर.
जिस तरह सर आप लोगों ने काम किया है ना सर, ये जो इकोनॉमी यहाँ तक आज पहुंची है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बैंकर्स का भी है सर। हम लोग भी काम कर रहे हैं और बैंकर्स कंटिन्यू काम कर रहे हैं सर। बैंकर्स की उनकी भी फैमिली है सर, लेकिन वो लोग भी 24/7 काम कर रहे हैं। इसीलिए आज इस इकोनॉमी जो पटरी पर लौटी है उसमें बैंकर्स का बहुत बड़ा योगदान है। पारितोष सर मैं एक क्वेश्चन आपसे कंटिन्यू करूंगा सर इसके अंदर कि सर ये जो हम 20% दे रहे हैं सर, ये मतलब इसमें किस तरह की यूनिट को आप दे रहे हैं? क्या एमएसएमई होना कंपलसरी है या उद्योग आधार होना कंपलसरी है या कोई भी बिजनेस एंटिटीज में अलाउ है? पारितोष सर अनम्यूट यस सर। हाँ ऐसा है, उद्योग आधार और इन सब की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इवन जो टैक्सी ऑपरेटर्स थे जो इंडिविजुअल नेम से जिन्होंने लोन लिया था फॉर कॉमर्शियल एक्टिविटीज, उन तक को हम लोगों ने ये रिलीफ दिया है। ऐसा नहीं है कि उनके पास, क्योंकि टैक्सी ऑपरेटर के पास इवन जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है ना। सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट ऑफ नेसेसिटी एंड इमरजेंसी, फंड्स हैव बीन गिवन टू देम आल्सो। हम लोग ने ये इंसिस्ट नहीं किया कि आपके पास उद्योग आधार होना ही है तभी हम आपको देंगे। इवन ट्रेडिंग यूनिट्स को भी दिया गया है। सर ये जो सिंपल मॉर्गेज लोन या जो बिल्डर्स हैं उनको भी हम दे रहे हैं सर ये 20% वाला? हाँ ये हम लोग ने देहरादून में दिया है। दे रहे सर कंटिन्यू? हाँ हाँ देहरादून में भी दिया है। आपके जो 2-3 बड़े बिल्डर्स हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको दिया गया है। सर मैं इसमें कंटिन्यू करूं, अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो होटल का हो या बिल्डर का हो या और कोई हो, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था और बीच में ये कोविड आ गया, तो सर क्या वो लोग भी एलिजिबल है इस 20% के लिए? अगर जी हमने दिए हैं, ऐसे लोगों को भी लोन दिए हैं जिनका प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, होटल्स हैं, उनको भी हमने दिया है। अरे इवन अगर उनका डीसीसीओ भी अगर एक्सटेंडेड हुआ है लास्ट टाइम में या डिफर हुआ है तो हमने उनको दिया है लोन, एक्सटेंड किया है ये जीईसीएल की फैसिलिटी। तो सर तो बहुत बड़ी चीज है सर। अगर आप मतलब ये सब हमारे सभी सीए साथियों के लिए एक अच्छा मैसेज है कि पर्टिकुलरली सारे बैंक, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि वो एमएसएमई या उद्योग आधार उसके पास कोई सरी, या ये भी कंपल्सन नहीं है उसके पास जीएसटी हो। इसमें यही लिखा हुआ है स्कीम के अंदर कि अगर वो जीएसटी के लिए लायबल है तो जीएसटी होना चाहिए, जहां पर वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं है वहां पर जीएसटी का होना कंपलसरी नहीं है। इस चीज में ये बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी चीज, अच्छी चीज जो है कि बैंकर्स बहुत पॉजिटिव हैं, जहां लोगों की नीड है वहां पर बैंकर्स उनको हेल्प कर रहे हैं। हमारा भी ये बनता है कि जहां पर हमारे किसी कस्टमर को अगर रिक्वायरमेंट है तो हम उसको बैंकर्स के पास भिजवाएं या बैंकर से हम बात करें, और हमको लगता है कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। अनूप सर Yes. एक क्वेश्चन मेरा प्रैक्टिकल और आ रहा है सर ये जो इसमें कंडीशन ये है कि 29 फरवरी को वो अकाउंट या तो होना चाहिए स्टैंडर्ड, या होना चाहिए SMA 0, या होना चाहिए SMA 1। अप टू SMA 1 वो अकाउंट अलाउ है, यदि SMA 2 है तो वो अलाउ नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस है। एग्रीड सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो कभी भी वो पास्ट में यदि वो एनपी हुआ था या वो SMA 2 में पहुंचा था और बाद में अपग्रेड होकर वो स्टैंडर्ड में आ गया, तो सर क्या कोई इंपैक्ट करेगा अभी उसको उस 20% देने के अंदर? नहीं, इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब ये स्कीम आई थी तो इसमें दो तीन चीज के क्लैरिफिकेशंस बाद में आए हैं। पास्ट वाला इफेक्ट अब नहीं आएगा। 29 फरवरी को उसका क्या स्टेटस है, क्या क्लासिफिकेशन है, दैट विल गो ऑन। और सेकेंडली जो एक और अभी डिस्कशन हमारा चल रहा था कि उसमें आया था कि उस डेट पे रनिंग यूनिट, तो जो रनिंग यूनिट्स पे के बाद भी फिर एक हमारे बैंक का सर्कुलर उसमें क्लैरिफिकेशन आया कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कोई प्रोजेक्ट मिड में है तो उनको भी हमने इसमें कोविड में 20% में एलिजिबल माना है और सैंक्शन किया है। सर रनिंग यूनिट सर यहाँ पर सर एक मैं दोबारा आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूंगा सर कि रनिंग यूनिट का मतलब क्या हुआ सर? मान लीजिए 29 फरवरी को मतलब ये जो कोविड के बाद में लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद में जो मेरी सारी लेबर है वो लेबर मेरी गांव पहुंच गई। अब जब मेरे पास लेबर बची ही नहीं सर, तो एक बार तो मैं उसको स्टार्ट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। हाँ सर धीरे धीरे हम या तो लोकल लेबर का इंतजाम कर रहे हैं या अब तो वापस स्टार्ट हो गया, जो माइग्रेंट लेबर हो चुकी थी उसको वापस बुलाने का काम चालू हो चुका है। तो रनिंग से मतलब क्या है सर यहाँ पर? मतलब यूनिट दिखनी चाहिए या सर फैक्ट्री चलनी चाहिए? हाँ, रनिंग इन द सेंस, क्योंकि ये तो एक मतलब पूरा एक नोन फैक्ट है
कि जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी यूनिट्स उस समय जब लेबर्स माइग्रेट कर गए तो वो यूनिट उस समय चल नहीं रही होगी लॉकडाउन के पीरियड में, लेकिन 20 को 101% दैट यूनिट मस्ट बी इन रनिंग स्टेटस, सो वी विल कंसिडर दैट। ओके सर, ओके सर, ओके। बीएल सिंह सर, मैं भी एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी कि सर जैसे अभी मैं देख रहा था GECL में कुछ प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। मेरे जी, पास बताइए सर। 300 GECL सैंक्शनड पड़े हैं। अब मैं सैंक्शनड को आई वांट टू डिसवर्स, क्योंकि मैं सैंक्शनड को नहीं मानता जब तक डिसवर्समेंट नहीं होगी तो एक्चुअली फ्लो नहीं होगा। तो उसमें सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन हेल्प इट। अगर आप थोड़ा गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग कर लें, आपकी एसोसिएशन कर ले। मेरे पास कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनका GECL की एलिजिबिलिटी है 9,000, 10,000, 12,000। बाकी हरियाणा स्टेट्स वगैरह ने क्या किया है कि जो स्टैंप ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी जो छोटे केस है उसमें रिलैक्स कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड स्टेट ने इसको रिलैक्स नहीं किया है। उससे क्या हो रहा है कि जो मेरा छोटा कस्टमर है तो ही इज गेटिंग प्रॉब्लम। अगर ये चीज अगर आप हाईलाइट कर दें गवर्नमेंट को, मैंने तो हाईलाइट करी थी, तो इसमें ना काफी हेल्प हो जाएगी लोगों को। दिस इज जस्ट माय सजेशन। विमल सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विमल सर ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। क्या है इस स्कीम में बिल्कुल क्लियर कट है, देयर इज नो प्रोसेसिंग फीस एंड देयर इज नो प्रीपेमेंट चार्जेस। लेकिन जो सर का कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को ना मान लीजिए उसका लोन है 10 लाख रुपए का केवल। अब 10 लाख रुपए के लोन के पीछे प्रोसेसिंग फीस तो नहीं लग रही, लेकिन पता पड़े 10,000 रुपए की या 20,000 रुपए की स्टैंप ड्यूटी अगर लग गई तो शायद उसको वो बियर करने की पोजीशन में ना रहेगा। तो सर आप पर्सनल लेवल के ऊपर, क्योंकि सर बीइंग इंस्टीट्यूट वी कांट प्रेजेंट आवरसेल्फ एज ए इंस्टीट्यूट लेवल, लेकिन पर्सनल लेवल के ऊपर जो भी आपकी लोकल एसोसिएशन बनी हुई है, आई एम सेइंग एसोसिएशन या पर्सनल लेवल के ऊपर आप मेरे ख्याल से बात कर सकते हैं। ये ग्रेट हेल्प होगी सर, क्योंकि मेरा ये मानना है सर कि जो छोटी यूनिट्स हैं वो सर इस देश की इकोनॉमी के योगदान के अंदर उनका बड़ा पार्ट है सर। सर टोटल मिला के 6 करोड़ 24 लाख सर, एज पर ओल्ड डेफिनेशन, आई एम टॉकिंग सर अबाउट एज पर ओल्ड डेफिनेशन, 6 करोड़ 24 लाख MSME यूनिट इंडिया के अंदर है सर। और 6 करोड़ 24 लाख यूनिट ही हमारा सब कुछ चला रही है सर। और इस 6 करोड़ 24 लाख में से अब तक जो टोटल जो बोरोवर हुआ है सर, वो मतलब बोरोवर के जो फिगर आ रहे हैं सर वो बहुत कम फिगर आ रहे हैं सर। अभी आउट ऑफ दैट 6 करोड़ 25 लाख जो बोरोवर जा रहे हैं वो बोरोवर कम जा रहे हैं। इसमें एक चीज और कहूंगा सर कि सर इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। आप लोगों को एजुकेट कीजिए सर। इवन जो पुराना लोन चल रहा होगा सर हमारा, वो महंगा है इससे लोन से। आप एक बार अगर एटलीस्ट सैंक्शन करा के रख लेंगे और आपकी पुरानी लिमिट के अंदर इसको एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि कोविड में दुनिया ये कह रही है सर कमाई करना भारी पड़ रहा है, लेकिन अगर हमने खर्चों को कम कर दिया, अगर हमारे कॉस्टिंग में कटौती कर दी हमने, तो वो भी अपने आप के अंदर बड़ी कमाई है। अगर 5 करोड़ तक की आपकी एलिजिबिलिटी है और 5 करोड़ के अंदर आपने 4% या 5% ब्याज बचा लिया, तो 20-25 लाख रुपए ब्याज बचाना भी बड़ी कमाई है अपने आप के अंदर। और सर एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है जी, वो काफी अच्छा रहेगा, SME गोल्ड लोन। SME गोल्ड, SME गोल्ड लोन, एक तो पीस गोल्ड लोन है। तो सर शायद आपको तो पता ही होगा, अगर आप मथूट फाइनेंस की बात करते हैं सर, तो मथूट फाइनेंस एनुअली कितना इंटरेस्ट चार्ज करता होगा रफली आप 14-15% है सर। मथूट का 14-15% एवरेज रेट एनालिसिस है, दैट इज अराउंड 20%। मतलब एनुअली जैसे 1.5% वो दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एनुअल बात कर रहा हूँ मैं, एनुअल की, दैट इज 7.35, मतलब 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वेरी चीप प्रोडक्ट। 7.45 इट्स वेरी गुड रेट। ग्रेट सर, ग्रेट। हाँ, तो लोगों को पता नहीं है, पीपल आर नॉट अवेयर। उसमें क्या हो रहा है कि लोग मथूट के पास भागी जा रहे हैं और उनका जो एनुअल फंड बनता है दैट इज अराउंड 19 से 20, मोर देन 20%, मोर देन 20 आई शुड से लाइक दिस। सर इसमें कोई अमाउंट की लिमिट है सर? इसमें सर अमाउंट की लिमिट डिफरेंट है। तो इसमें क्या है कि मैं पी सेगमेंट की अगर आपको बात करता हूँ ना, पी सेगमेंट में बेसिकली मैं इसमें द्वारा से SME की जो स्कीम आई, जहाँ परितोष जी को पता होगा, शायद उन्होंने चेक किया होगा कि कैप क्या है। तो परितोष जी परितोष सर इसमें अमाउंट की कैपिंग है सर? इसमें है ऊपर की लिमिट है। SME गोल्ड लोन में सर मिनिमम इज 1 लाख, मैक्सिमम इज 20 लाख। अरे सर इट्स वेरी गुड स्कीम सर। अगर 7.45 पे अगर गोल्ड लोन मिल जाता है
नथिंग बेटर इट। और सबके पास कुछ ना कुछ गोल्ड तो अवेलेबल होता ही है। और सर वैसे भी सर मेरा ये मानना होता है कि गोल्ड कभी बिकता नहीं है, गोल्ड संकट में बिकता है। और जब संकट होता है ना तो उस टाइम गोल्ड का भाव पूछते भी नहीं है कोई, या तो वो इस लेवल की तकलीफ होगी तो उसको ले और मुझे जीने दे। तो सर मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुथूट के पास जाएं या बनिया के पास या साहूकार के पास जाएं, वो भी रेट ज्यादा आएगी 7.55। इट्स अ वेरी गुड रेट। यस ये सर। पी सेगमेंट में भी है, पर्सनल कैपेसिटी पे है और एसएमई में भी है। जी तो मैं सर, ये जी सर। करूंगा कि बेसिकली मैंने जो देखा है कि पीपल आर नॉट अवेयर, इवन इन अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी एज कंपेयर टू मुथूट ना बहुत सस्ता रेट है और लोगों को पता नहीं रहता। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि कुछ ऐसी स्कीम्स हमारी जो है ना अच्छी स्कीम्स हैं, जैसे मिस्टर परितोष जी तो टोटली एसएमई में इन्वॉल्व रहते हैं, जी तो इस काफी स्कीम्स प्रमोट भी की हैं। रादर हमने पीछे वेबिनार किया था पूरे उत्तराखंड का जी आफ्टर कस्टमर्स, तो उसमें जी बहुत सारी आई और उसमें मुझे यही लगा कि बिकॉज बहुत सारे जो मेरे हाई वैल्यू कस्टमर है दे आर रिलाइंग ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट, और क्या होता है कि वो खुद अपना दिमाग नहीं लगाते, जो सीए साहब ने गाइड कर दिया तो नेचुरली हमेशा अच्छा ही गाइड करता है। आई बिलीव इट बिकॉज आई हैड बीन टू डिफरेंट प्लेसेस। इसके पहले आई सर 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 1 तारीख को सर ओम बिरला जी हमारे सीए डे के ऊपर ऑलरेडी कह चुके हैं सर, वी आर फाइनेंशियल डॉक्टर, वी आर फाइनेंशियल डॉक्टर। और आपकी हेल्प के बिना हम नहीं चल सकते। अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज बिफोर दिस असाइनमेंट आई हैव बीन टू मुंबई, और मुंबई में भी अगर हमारा अच्छा काम हुआ एसबीआई ओनली ड्यू टू सीए, जिसके पहले मैं जम्मू कश्मीर में था, पंजाब में रहा, लाइक सो मेनी प्लेसेस। तो यहाँ पे आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, रादर आई एम वेरी थैंकफुल कि इससे क्या हो रहा है कि हमारी इंटरेक्शन और बढ़ेगी। श्योर क्योंकि सर श्योर। विमल जी फर्स्ट टाइम मैं मिला हूँ, मुझे भी 1.5-2 साल हो गए यहाँ आए हुए, तो उनसे एक बड़ी पॉजिटिविटी सी लगी है। तो मैं अगेन आई रिक्वेस्ट, क्योंकि देखिए ना हमारे में एसएमई पे इतना ज्यादा वो है, फोकस है कि एक फुल टाइम एजीएम ओनली एसएमई, और उनके ये अपने परितोष जी एंड इज फुली वेल वर्स्ड वेरी नॉलेजेबल पर्सन, जो कहते हैं ना एक सबसे इंटेलिजेंट बंदा हमने रखा है। तो इसमें मैं आप सबको यही कहूंगा कि प्लीज हमें लीड्स दीजिएगा, जितनी लीड्स आप दे पाए हमें। थैंक यू सर। सर मैं आपसे कहना चाहूंगा सर 170 चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी आपके साथ जुड़े हुए हैं सर। और सर ये जो पर्पज हमारे इस प्रोग्राम को करने का है वो यही पर्पज है सर कि एक कनेक्टिविटी हो सर। इस कोविड ने ये काम जरूर किया है सर, जो नेटवर्किंग इस टाइम डेवलप हुई है सर, मेरे ख्याल से मेरे जीते जी कभी इतनी नेटवर्किंग डेवलप नहीं हो पाई है। yes definitely सर मेरा ये मेरा 24th प्रोग्राम है सर ये, और मतलब इतनी ब्रांचेज में 2 महीने में मैं रीच कर गया। अगर ये वेबिनार्स नहीं होती तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि शायद मैं इस लेवल पे इतनी ब्रांचेस के पास में मैं पहुंच पाता, लोग हमसे इतना अटैच हो पाते। वेरी गुड। अनूप सर। यस सर आवाज आ रही है सर? सर एक क्वेश्चन सर मेरा इससे रिलेटेड एक और सर, अगेन वापस वही सर जो हमारा टूरिज्म रिलेटेड था सर, वो सर मैंने पूछा पर्टिकुलर टूरिज्म के लिए। सर टूरिज्म के साथ साथ सर जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है, चाहे सर वो टैक्सी हो या वो बस हो या वो ऑटो वाला हो या ट्रक वाला हो, सर वहां पर बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, ये पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो ऑर्गेनाइज जो है में काम कर रहे हैं वाला चीज हो गई, लेकिन जो केवल एक टैक्सी लेके बैठा है या एक ट्रक लेके बैठा है, एक बस लेके बैठा है, उसके लिए सर दोनों चीजें हैं सर। मेरा ये मानना है प्लस भी है कुछ माइनस भी है। प्लस इस सेंस में हुआ है सर कि पहले बिफोर कोविड एक टैक्सी के अंदर 5-5, 6-6, 7-7 आदमी ट्रेवल करते थे। आफ्टर कोविड अब जो एक टैक्सी के अंदर मेरे ख्याल से 2 या 3 आदमी ट्रेवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कोप इसका बढ़ भी रहा है। तो सर आपको किस तरह फील हो रहा है कि क्या सर ये जो ऑटो सेक्टर है सर ये बूस्ट करेगा? अनूप सर। देखो इसमें कोविड के बाद ये बात बिल्कुल सही है कि दिस सेक्टर हैज गॉट अ बिग हिट। और जो पहले हमारा जैसे अभी आप देखोगे जो इनके महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो सीईओ ने थार लॉन्च पे जो एक कमेंट किया है वो मैंने पढ़ा था। उसमें उन्होंने लिखा है कि अब जो व्हीकल ओन करने वाला जो ट्रेंड है वो एंटायरली चेंज हो जाएगा। पहले हमें ऐसा लगता था कि अब शेयर टैक्सी वाला कॉन्सेप्ट चलेगा या पर्सनल आदमी उसमें जाएगा, वो दोनों कॉन्सेप्ट कोविड ने फेल कर दिए। अब 1 या 2 या मैक्सिमम 3 पैसेंजर्स ऐसा कोई कॉन्सेप्ट चलेगा। तो आने वाले समय में कुछ नई स्कीम, कोई नया डिमांड इस सेक्टर से बैंकर्स के पास पक्का आएगी। जहां तक अभी तक की बात है, कॉमर्शियल में हमने कोविड में उन सब लोगों को जो रिटेल या उसमें एमएसएमई में क्लब कर रहा था उस हिसाब से हमने फाइनेंस उनको किया है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि ये सेक्टर फिलहाल स्ट्रेस में है।
सर कुछ ऊपर वालों को बोलिए सर। मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये सर, एक अच्छी पोजीशन पे आप बैठे हुए हैं तो, क्योंकि सर अगस्त सर अगले महीने आ चुकी है, और अगस्त प्रैक्टिकली सर सुनिए आप, लिखा हुआ स्कीम में ये है कि 31 अगस्त तक मोरेटोरियम है, लेकिन सर मेरा ये मानना है प्रैक्टिकली ये जो मोरेटोरियम अवेलेबल है ये 1 अगस्त या 5 अगस्त है, क्योंकि सर जितने भी ईएमआई बेस्ड लोन है उनकी 1 अगस्त या 5 अगस्त को लास्ट ईएमआई आ जाएगी। उसके बाद जो ईएमआई आएगी इट विल कम इन सितंबर, तो बेसिकली उनके लिए मोरेटोरियम ओवर हो चुका होगा। तो यदि सर गवर्नमेंट या आरबीआई कुछ नहीं करती है तो कहीं ना कहीं हमारे सर हम बैंकों को सोचना पड़ेगा कि उसको हम किस तरह से एडिशनल रिलीफ दे सके। और सर आपको भी मुझे लगता है कि कस्टमर्स को बताना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स मुझे लगता है दे आर लिविंग अंडर मिसकंसेप्शन कि शायद ये माफ हो जाएगा। बेसिकली इट इज डेफरमेंट। और मुझे लग रहा है कि अभी भी आज की डेट में भी कुछ अच्छे कस्टमर से मैं मिला था तो वो उनको लगता है कि शायद ये, तो मुझे लगता है कि एनपीए में एक सर्ज ना आ जाए, एनपीए बढ़ ना जाए, तो उसमें मुझे लगता है कि एज ए सीए आपको सबको कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि इट इज नॉट डेफरमेंट। बिकॉज पीछे क्या हुआ, आई हैव बीन इन सेक्रेटरी, सचिवालय की बात बता रहा हूँ मैं, तो सचिवालय में चीफ सेक्रेटरी के साथ आई वाज जस्ट सिटिंग, तो बीच में एक सेक्रेटरी आए हैं तो कहते हैं कि सर आपसे एक बात करनी है। मैं बताइए सर, होम लोन में डेफरमेंट दे दो। मैं कहा यार आपको किस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को किस चीज की डेफरमेंट हम दे दें? डेफरमेंट सबके लिए मैं मानता हूँ, लेकिन प्लीज इस कंसेप्शन में मत रहिए कि ये माफ हो जाएगा, आपको पे करना ही पड़ेगा। मतलब मैंने देखा कि बड़े हाई ऑफिशियल से भी मैं बात करता हूँ, उनको लगता है नहीं दिस इज नॉट डेफरमेंट, बेसिकली ये सारा माफ हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज अवेयर कीजिएगा कस्टमर्स को कि, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो मैं बार बार कहता हूँ कि भैया अपनी लाइबिलिटी क्यों बढ़ा रहे हो, टाइमली दे दो, अभी दे दो तो आपकी वैसे लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये कि जो कंसेप्ट है, मिसकंसेप्शन जो है सर, तो ये कस्टमर्स को प्लीज सर एक मैसेज सर मैं और दे सकता हूँ सर आपकी तरफ से सर, एक मैसेज कि ये जो सेकंड मोरेटोरियम आया था उस टाइम ये बहुत रूमर हुआ था कि इंटरेस्ट वेव होने वाला है। नोट एट ऑल। जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई हुई है, इट इज ओनली फॉर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और टिल डेट अभी भी उस पिटीशन का कोई डिसीजन नहीं आया है। आज तक की पोजीशन यही है कि हमको इंटरेस्ट भी पे करना है और उस इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट वो भी पे करना है, क्योंकि इसका जो फिगर आउट हुआ है सर वो हुआ है कि अगर 1 महीने का इंटरेस्ट बैंक वेव करता है इट कम्स टू 1 लाख करोड़। अगर 6 महीने का इंटरेस्ट वेव हो गया तो ये आ गया 6 लाख करोड़ रुपया। तो 6 लाख करोड़ रुपया वेव करने का मतलब हो गया इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह तोड़ देना। तो मुझे लगता नहीं कि वो पॉसिबल हो पाएगा, मुझे भी लगता है सर वो पॉसिबल हो पाएगा। आशुतोष सर, परितोष सर अनम्यूट प्लीज। हाँ बोलिए सर एक और क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल पूछना है सर मुझे। ये जो 20% सर हम लोगों ने एडिशन जो दिया है, अभी जो दिया है सर इस कोविड के अंदर, जो हमने जो इमरजेंसी लाइन वाला जो दिया है सर जब कभी भी हम एनहांसमेंट मांगेंगे तो सर क्या एनहांसमेंट के अंदर 2 चीजें होती है, डीएससीआर और एक एमपीपीएफ, क्या सर दोनों में ये काउंट होगा या ये अलग से रखा जाएगा? ये परितोष सर क्या कनेक्शन लॉस्ट हो गया क्या? सर आवाज आ रही है? परितोष सर आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए सर। अब रिजॉइन कर लिया सर ने। परितोष सर जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने इस कोविड के अंदर जो एडिशनल 20% अभी दिया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन वाला, तो जब कभी भी सर क्लाइंट आपसे एनहांसमेंट मांगेगा तो उस एनहांसमेंट की जो कैलकुलेशन होती है सर उसकी डीएससीआर और एमपीपीएफ क्या दोनों के लिए ये काउंट होगा सर? नहीं, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं, ये बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि इसमें जो है ना बैंक का, इसमें बेसिकली क्योंकि ये गारंटीड है बाय द गवर्नमेंट जी, तो इसमें खाली जब वो एनहांसमेंट ऑफ लिमिट्स के लिए आएगा, वैसे मुझको नहीं लगता कि, क्योंकि ये एनहांसमेंट अभी क्योंकि 20% मोर और लेस सभी लोग एनहांसमेंट ले चुके हैं, जैसे बड़े जो हमारे क्लाइंट्स हैं, इसको अभी बैंक ने ऐसा कुछ क्लेरिफाई नहीं किया कि डीएससीआर कैलकुलेशंस या नए उसके लिए हम उसको कंसीडर करेंगे कि नहीं। जहां तक मुझे लगता है बैंक इसको नहीं कंसीडर करेगी, क्योंकि दिस अमाउंट इज ओवर एंड अबव व्हाट वी हैड एस्टिमेटेड इन द पास्ट। सर एक क्वेश्चन सर मेरा साथ में सर अभी अटैच इससे यही है सर क्वेश्चन कि क्या इसके लिए सर जो अकाउंट का कंडक्ट है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट सर। अगर उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, हालांकि सर वो किसी भी कीमत में अभी तो वो SMA 2 के अंदर नहीं गया है, तो सर जो अकाउंट का कंडक्ट है
सर क्या वो इम्पोर्टेंट है या वो नहीं है सर? नहीं, जो हम लोग का जो लोन LLMS करके जो हमारा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वो तो उसको कंसिडर करता है, कंडक्ट ऑफ अकाउंट, क्रेडिट सबमिशन इन द अकाउंट, टाइमली रिपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब चीजों को क्योंकि वो तो जब ये प्रोग्राम बना था से 3 इयर्स और 4 इयर्स डाउन द लाइन, तब तक ये चीजें उसमें इनबिल्ट थी। लेकिन अब ये चेंज सिनेरियो है, तो मतलब वी कैन ऑलवेज गिव इट इन फुटनोट्स कि मतलब टिल कोविड द कंडक्ट ऑफ अकाउंट वाज सैटिस्फैक्टरी, इतना परसेंटेज क्रेडिट आता था। क्योंकि अब क्या हो, जैसे जब 40 डेज तक पूरा एंटायर नेशन वाज लॉकडाउन, तो नेचुरली क्रेडिट सबमिशंस भी उतने कम हो गए हैं। दैट कैन ऑलवेज बी मेंशन्ड इन फुटनोट्स। ओवरऑल मेरे ख्याल से इसका कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा कस्टमर के अकाउंट पे। ओके सर, यानी कुल मिला के उसका कंडक्ट का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर नहीं है। कुछ प्राइवेट बैंक परेशान कर रहे हैं सर यहाँ पर, नेशनलाइज परेशान नहीं कर रहे, लेकिन प्राइवेट बैंक यहाँ परेशान कर रहे हैं सर कंडक्ट को लेकर सर यहाँ पर। सैनी सर, सैनी सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सर मेरा और इससे रिलेटेड सर। सर ये जो 25 करोड़ का जो टोटल लोन हम चेक कर रहे हैं सर, हेलो, हाँ जी, 25 करोड़ का जो हम देख रहे हैं उसका जो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए 29 फरवरी को, सर हम इसको किस तरह चेक कर रहे हैं? ये सिबिल से चेक हो रहा है या सर उसके सिर्फ जो बैलेंस शीट के अंदर लोन आ रहा है उससे चेक हो रहा है, या किस तरह चेक हो रहा है सर? ये 25 करोड़ रुपए जो है सर हमारे पास 25 फरवरी वो रहता है पूरा, हमारे पास फिगर रहता है। आप ये कह रहे हैं ना कि 29 फरवरी की आउटस्टैंडिंग कैसे चेक करें, इसकी बात कर रहे हैं? जी। हाँ, तो वो कस्टमर का रहता है सर। हमारे पास आईरिक स्टेटस रहता है, आईरिक स्टेटस भी रहता है और आउटस्टैंडिंग भी रहता है। और बड़ा सिंपल फार्मूला है, 1 पेज का फॉर्मेट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बिल्कुल बात नहीं। इट इज अ वेरी सिंपलीफाइड एंड 1 पेज फॉर्मेट है। तो उसमें हम चेक कर लेते हैं उसका CBS, हमारा कोर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हम इसकी आउटस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं, और उसमें हमारा सारा आ जाता है कि क्या क्या है और कैसे है। तो और आईरिक स्टेटस भी वहां से चेक हो जाता है कि आईरिक 0 में था जब 1 में था, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हम कर लेते हैं सब। अनूप सर इसमें मैं आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा सर। इसमें सर 2 तरह की सिचुएशन मान रहा हूं सर कि मैं किसी पर्टिकुलर लोन में बोरोवर हूं, जब मैं बोरोवर हो गया तो बट नेचुरल लायबिलिटी मेरी हो गई वो। लेकिन सर किसी अगर लोन में मैं को बोरोवर हूं सर, तब भी क्या सर वो लोन मेरा मानते हैं कि आप लोग? मैं को बोरोवर हूं सर, मेरी सिबिल में लोन आ रहा है, मैं को बोरोवर हूं, मेरी सिबिल में लोन आ रहा है, लेकिन सर मेरी बैलेंस शीट में भी लोन नहीं आ रहा और मैं उसका रिपेमेंट भी नहीं कर रहा हूं। देखिए जी, इसमें क्या है कि इस वाली सिचुएशन में ये सवाल शायद मैंने पहले आई केम अक्रॉस विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। लेकिन जब हम अप्राइजल कोई करते हैं किसी चीज को, तो सिबिल तो बैंक कंसिडर करता ही है, उसमें उसके स्कोर्स कितने हैं, कहाँ पर क्या है। तो वो तो अभी कोविड के बाद कोई एक और इसमें मान लिया कोई नई चीज आई भी हमारे सामने, तो ऐसे नोटिस में नहीं आई। लेकिन अभी तो एट प्रेजेंट वी हैव टू कंसीडर दैट। अरे तो सर जी बताएं। अरे तो सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि सिचुएशन 2 अलग अलग है सर। एक लोन में मैं बोरोवर हूँ, मेरी बैलेंस शीट में वो आ रहा है, उसका जो EMI का पेमेंट है वो मैं कर रहा हूँ, तो बट नेचुरली वो लोन मेरा हो गया। लेकिन सर एक लोन के अंदर सर वो ले रखा है मेरी सिस्टर का, दूसरी यूनिट ले रखा है, मेरे चाचा जी की है या मेरे भाई की है या मेरे बहन की है या मेरे पिताजी की फर्म है, मैं उसके अंदर सर को बोरोवर हूँ सर, वो मेरी बैलेंस शीट में भी नहीं आ रहा है, उसका जो EMI का रीपेमेंट है वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सर चूंकि मैं को बोरोवर हूँ इसलिए वो मेरे सिबिल में आ रहा है, तो सर क्या वो मेरे 25 करोड़ के एक्सपोजर का पार्ट होगा या नहीं होगा? नहीं, ये आपके उसका अलग होगा ना, दोनों यूनिट्स तो अलग हैं जी। उनका CIF नंबर अलग है, अकाउंट नंबर्स अलग हैं। हाँ, तो वो अलग अलग ही मिलेगा, इट विल नॉट बी क्लब। हाँ मतलब सर वो मेरे अकाउंट नहीं होने से मेरा सर पर्पस यही है कि वो टेक्निकली हाँ जैन साहब, कैन आई ऐड? यस सर प्लीज। हाँ, इस सिचुएशन में these will be treated as 2 forms. In one, you are a borrower that will be coming in your balance sheet. In another one, in which you are co-applicant, that will not come. But what I was trying to tell that suppose if अगर कोई ऐसा पार्ट में आप जा रहे हो जिसमें एक जगह आप को बोरोवर हो और वहां सिबिल उसका कम करता है, then bank will consider it. इस केस में it will be treated as 2 entities.
हाँ सर, मेरा एग्जैक्टली सर मेरा पर्पज यही था सर। ये तो चूंकि सर क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसलिए एग्जैक्टली यही है सर कि मेरा इसमें तो स्पष्ट है कि जिसकी बैलेंस शीट में वो लोन आ रहा है और जो उसकी ईएमआई पे कर रहा है, ये ऑब्लिगेशन उसका है। टेक्निकली मैं उसमें कोऑपरेटर हूं केवल, बस। यस यस। सैनी सर, सर सैनी सर, सबका जो एक जो कॉमन क्वेश्चन है वो रोज जो आ रहा है सर, क्या जो नए लोन है, चाहे वो नई एमएसएमई हो या सर नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो या नई इंडस्ट्री हो या नए होटल्स हो, तो सर क्या हम लोन दे रहे हैं उतना ही एग्रेसिव है जितना सर पहले एग्रेसिव थे? सर हम दे रहे हैं, इसमें हम मुद्रा योजना के अंडर भी दे रहे हैं। मुद्रा योजना तो खैर स्मॉल अमाउंट आ जाएगा उसमें, बाकी सीजीटीएमएससी के अंडर हम दे रहे हैं। और हमारी भी सर परफॉर्मेंस बहुत मॉनिटरिंग हो रही है, बिकॉज गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव है। मुझे लगता है बैंक इतने कभी मॉनिटर नहीं हुए जितने अभी मॉनिटरिंग हो रही है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में भी दे रहे हैं हम। टूरिज्म सेक्टर में थोड़ा सा स्लम्प है, बाकी देयर इज ए इंक्रीज इन हॉस्पिटल एंड मेडिकल केयर सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, and banks are receiving new hospital proposals and also of expenses. हम काफी hospitals proposals not in here daily I was just discussing with something all over India जो hospital की जो proposals हैं we are getting it, तो हम दे रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर को थोड़ा सा अभी हम नेगेटिव उसमें दे रहे हैं, बट बाकी ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना जैसे है इसकी हमें टारगेट ऑलरेडी आ चुके हैं। और एसएलबीसी में क्या होता है, स्टेट लेवल बैंकर कमेटीज में, दैट इज चेयर्ड बाय चीफ सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी भी स्टैंड अप इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, सीजीटीएमएससी, पीएमईजीपी, इनकी परफॉर्मेंस रेगुलरली चेक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं सर, न्यू जितने भी प्रपोजल है वो डूइंग इट। तो अगर किसी के पास भी कोई वायबल प्रपोजल है तो देखें। सर मेरे ख्याल से सर एक सबसे बढ़िया मैसेज है हमारे सभी सीए साथियों के लिए कि बैंकर्स कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और जैसे सैनी जी बोल रहे हैं कि बैंकर्स इतने मॉनिटर कभी नहीं हुए जितने मॉनिटर अभी हो रहे हैं, तो सर हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक और अच्छी चीज है सर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसके लिए कहीं बाहर जाना ही नहीं है। जो हमारे खुद के क्लाइंटल है और उन क्लाइंटल के मिलने वाले हैं, दैट आर मोर देन सफिशिएंट। इससे हमारा भी काम होता है, उनका भी काम हो रहा है, और वी आर बिकमिंग पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग इन रियल सेंस। अनूप सर, आपसे भी कमेंट चाहूंगा सर इसके अंदर में। अनूप सर, मैं जैसा सैनी सर ने बोला है मैं उस चीज को एंडोर्स करता हूँ। और इस समय पे इतना पहले कभी भी बैंकों की मॉनिटरिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई। और दूसरा क्या है कि बैंकर्स अगर आप देखो तो इस समय ये जो कोविड का जो पेंडेमिक आया, इस समय बैंकर्स खुद हमारे पास, आप सोचो कि जो हमारा क्लाइंट है अगर वो सरवाइव नहीं कर पाया तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली बैंक को आना है, अल्टीमेटली नेशन को आना है। तो इस समय बैंकर्स अपनी लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच होके काम किया है। और हमने मतलब जितनी एडवाइस हम कर सकते हैं, और मैं तो बल्कि आपके पार्ट से भी ये बोलूंगा क्योंकि क्लाइंट कई बार आप लोगों को टच में ज्यादा रहता है, तो आप भी उसको यही एडवाइस करो कि इस अपॉर्चुनिटी को वो ले, अपनी लिमिट्स को यूटिलाइज करे, जो भी गवर्नमेंट से बैंक से उससे फंड मिल रहा है और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे और सरवाइव करे और एक्सेल करे उसके बाद। थैंक यू वेरी मच सर। हम भी यही कर रहे हैं सर, हम भी कंटिन्यू, हम चाहते भी यही है सर। हमने कहा ना सर कि हमारा क्लाइंट सर्वाइव करेगा, उसके पीछे हम सर्वाइव करेंगे सर। हम तो खुद चाहते हैं उसका टर्नओवर 100 करोड़ का हो तो 200 करोड़ का हो। जब उसका टर्नओवर डबल होगा तब मेरी फीस डबल होगी सर, वरना तो मेरे लिए भी वो तो संकट उतना बराबर मेरे लिए भी सर। यस सर, यस सर। सैनी सर, सैनी सर, वन मोर रिलेवेंट क्वेश्चन इन प्रेजेंट सिनेरियो सर। एक एलआरडी बहुत वनीला प्रोजेक्ट है हर बैंक का सर, ये क्वेश्चन हर जगह पे आता है। अब एलआरडी सर हो गया लीज रेंटल डिस्काउंटिंग। चूंकि सर जब उसको मैंने किराए पे दिया था प्रॉपर्टी को, तब एक अच्छा खासा लीज रेंट भी आ रहा था, वो शानदार तरीके से निभ भी रहा था। लेकिन सर कोविड के अंदर से दो प्रॉब्लम हो गई, या तो सर मेरा टेनेंट खाली करके भाग रहा है क्योंकि उसको वो संकट में है, या सर वो उस किराए को सर सिग्निफिकेंटली कम कर रहा है। इवन इन सब केसेस इट इज रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 40%, 50%, 60%। तो सर उस केस में सर मेरे हिसाब से सर उसको सर्वाइव करना बहुत भारी हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी सर, अगर उसने 6 महीने का मोरेटोरियम ले लिया तो मोरेटोरियम के बाद भी उसको निभाना बहुत भारी पड़ जाएगा सर। तो सर किस तरह आप सोच रहे हैं? मेरा ये मानना है सर, मैं सर स्पष्ट बोलूं आपको कि सर आप अपने अपर मैनेजमेंट को, क्योंकि सर कुछ भी स्पेसिफिक इसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं आया स्पेसिफिक, तो सर अपर मैनेजमेंट को सोच के सर इसका टेन्योर एक्सटेंड करने के अलावा सर मेरे ख्याल से और कोई उपाय इसमें है नहीं। सैनी सर। यस सर, यस सर।
इट इज ए बेसिकली पॉलिसी लेवल डिसीजन, यू आर वेरी राइट। इसके पहले भी बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन मुझे एक बड़े अच्छे कस्टमर ने किया था, लेकिन एज सच अभी इनके लिए कोई स्पेशल वो नहीं आया है, लेकिन वी विल एस्केलेट, और जो भी सजेशन रहेगी देखते हैं, लेट अस सी। हो सकता है बैंक को डिसीजन लेके, वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज आई एम प्रैक्टिकली फेसिंग सच टाइप ऑफ सिचुएशन। जैसे आपने क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे, मुझे लग रहा है कि मेरे कस्टमर मुझसे पूछ रहे हैं, बिकॉज यू आर प्रैक्टिकली डूइंग ऑल दिस। तो सर वी विल टेक केयर। अभी बैंक में आपको बताऊं, बैंक की जनरली कंजर्वेटिव व्हाइल असेसिंग द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फॉर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज आर लाइक, अभी थोड़ा सा है, बट वी विल एस्केलेट डेफिनेटली। अनूप सर। यस सर। सर आप भी इसको फील कर रहे होंगे सर, क्योंकि मेरे ख्याल से अच्छा खासा एक्सपोजर आपका भी है सर। हमारा इसमें अच्छा एक्सपोजर है। हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट फ्यूचर रेंट रिसीवेबल, आपको पता होगा, उसके नाम से जानते हैं हम इसे। हाँ। इसमें क्या है कि ये बात आपकी इस समय सही है कि कहीं पर रेंट्स कम हो रहे हैं, कुछ टेनेंट्स खुद खाली कर रहे हैं, कुछ से खाली कराया भी जा रहा है क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहा है उतना। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि क्योंकि अभी कोविड एक अपने आप में एक नई चीज आई है, तो कई सारे चीजों को इसने मतलब समझो बर्थ दिया है। और अगर इस तरीके के हमारे इतने ब्रिलियंट प्रोडक्ट में अगर ऐसे स्ट्रेस आएगा, तो बैंक हमारा कॉर्पोरेट लेवल पे इस पे कोई ना कोई एनहेंसमेंट ऑफ इसका टेनर, या इसमें एक्स्ट्रा फंडिंग, या बैलूनिंग ऑफ द इंस्टॉलमेंट, कुछ ना कुछ हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस इसमें कॉल जरूर लेगा। सर मेरा भी मानना यही है सर, मेरा भी मानना यही है सर, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट करती है, वो टीनेंट भी है सर। जो उसका 15 साल का एग्रीमेंट हुआ, श्योरली इट विल बी एक्सटेंड टू नेक्स्ट 10 ईयर, क्योंकि जो कोविड की समस्या है, ठीक है। मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है सर, जिस तरह से 15 अगस्त 47 को हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, कहीं ना कहीं 15 अगस्त 2020 कुछ ना कुछ तो सर अच्छी सूचना, कुछ ना कुछ शुभ चीजें हमारे लिए लेके आएगा। बहुत ज्यादा होपफुल हो सर, और शायद वही चीज हमको आगे जिंदा रखेगी। और मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा, जिस हिसाब से बिजनेस कम्युनिटी, आप लोगों की एसोसिएशन, बैंकर्स, गवर्नमेंट, अदरवाइज अभी आप देखो कि हम ट्रैक पे, हमें एक हिंट मिल रहा है कि, हिंट नहीं बल्कि समझो अच्छे सिम्टम्स मिल रहे हैं, इकोनॉमी ट्रैक पे आ रही है। और इस समय पे जैसे कोविड को बचाने के लिए इम्यूनिटी है, पॉजिटिविटी है, यही हमें इंडस्ट्री और इकोनॉमी को बचाने के लिए लगाना पड़ेगा। वो इन फॉर्म ऑफ फंडिंग, एनहेंसमेंट, रिस्ट्रक्चरिंग, या जिस हिसाब से भी हम हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, ये भी। और सब बैंकर जिसको कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है। आप देखो हर चीज अभी स्ट्रेस वाले पार्ट के लिए भी पैकेज है, तो इसका मतलब अभी और कुछ सिम्टम्स आएंगे और कुछ नई स्कीम्स भी आएंगी। थैंक यू सर। अरे तो सर जी बताएं। अरे तो सर एक चीज और आ रही है सर, कि इस पर्टिकुलर स्कीम की एक बड़ी कंडीशन ये है कि जो भी आपने पुरानी प्रॉपर्टी दी हुई है उसके ऊपर आपका ईएम एक्सटेंड होगा, दैट इज कंपलसरी। आप एडिशनल कोलेटरल नहीं मांग रहे हैं, इट इज गुड, लेकिन जो पुरानी प्रॉपर्टी आपने दी हुई है उसके ऊपर आपका ईएम एक्सटेंड होगा। सर यहाँ पर एक जगह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ये आ रही है कि जहां पर थर्ड पार्टी कोलेटरल दी हुई है, वहां पर ये जरूरी हो गया सर जिस थर्ड पार्टी की कोलेटरल है वो एग्री हो, क्योंकि सर ईएम एक्सटेंड वही करा पाएगा। तो सर कई जगह नाटक हो रहे हैं सर, जो थर्ड पार्टी वाला जो जिसने प्रॉपर्टी दे रखी है उसको सर एग्री करवाना भारी पड़ रहा है। तो सर कोई सॉल्यूशन है इसका, या हमको सर वो थर्ड पार्टी जो ईएम है वो एक्सटेंड कराना पड़ेगा? वो थर्ड पार्टी ईएम तो एक्सटेंड कराना पड़ेगा, क्योंकि जो बैंक के जो गाइडलाइंस आई थी उसमें खाली रजिस्टर्ड मॉर्टगेज क्रिएट करने के लिए बैंक ने 3 महीने का टाइम दिया था। अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन और जो बाकी फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लीट करने के बाद ही डिसबर्सल होना है। जी सर, तो मिला के वो कंपल्सन हो गया सर, मनाना पड़ेगा उसको जैसे भी करके जिसको थर्ड पार्टी दी हुई है। नहीं, अभी तक तो मेरे सामने ऐसा कोई केस आया नहीं है जहाँ पे इस टाइप का कोई इशू रेज हुआ हो। मैंने सो फार मेरा तो ये मानना है कि जब भी कोई फैमिली में बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा, चाहे भले उसके भाई की, फादर की, इन लॉज की, किसी की भी प्रॉपर्टी है, तो मेरे ख्याल से आज की स्टेज में कोई फैमिली मेंबर ये नहीं चाहेगा कि मेरा लड़का या सन इन लॉ या भतीजा या भांजा इस टाइम के क्राइसिस में उसको मैं और परेशान करूं। अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई आया नहीं है। सर दोनों क्राइसिस में वो जो फादर इन लॉ है बेचारा वो भी क्राइसिस के अंदर है। नहीं, लेकिन आई डोंट थिंक ह्यूमैनिटी तो अभी खत्म नहीं हुई है। yes, हम लोग उस स्टेज पे नहीं आए हैं सर, वो ह्यूमैनिटी है सर, इसीलिए हम जिंदा है सर, और ये रहेगी।
सर इस देश की असेट यही है सर, और वो रहेगी सर, वो बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल, वही सैनी मैं कह सर, रहा हूँ। तो अब सैनी सर, सर सर इसके अंदर एक चीज और बड़ी आ रही है सर निकल के, अब तक जो ये स्कीम है, कई लोग सर इस 20% को अवेल कर चुके हैं। यस सर, सर कई लोगों के लिए सर, प्लीज डोंट टेक मी अदरवाइज, डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं क्लियर वर्ड काम ले रहा हूँ सर। कई लोगों के लिए सर ये 20% लेना उनके गले की हड्डी बन गई है सर, क्योंकि 20% लेने के बाद वो इस अकाउंट को कहीं और ट्रांसफर नहीं करवा पा रहा है। अगर सपोज करिए पहले वो एक्स बैंकर के पास था, नाउ ही वांट टू शिफ्टेड वाई बैंकर, क्योंकि उसको वाई बैंक अच्छा दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है सर कि वो जो गारंटी है वो गारंटी एक्स बैंकर के पास में है। अब सर ये लोन 4 साल का है सर, तो सर इसका मतलब थोड़ी 4 साल 4 साल के लिए वो स्टक हो गया, उसको आपके पास ही रहना पड़ेगा। तो सर इसका ये तो बड़े क्या? हेलो सर, मुझे पता क्या लग रहा है, सर आवाज ब्रेक हो रही है सर, सर आवाज ब्रेक हो रही है। कह रहे हैं ना, ये बड़े रेयर से केसेस हैं, बड़े छोटे। सर मैं ये कह रहा था कि जो बहुत कम केसेस ऐसे होंगे, बहुत ही कम, क्योंकि मुझे जनरली आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच केसेस। अभी तक जितने भी कस्टमर्स हैं जनरली किसी भी बैंक के पास है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है, पीएनबी, एसबीआई, जनरली दे आर सेटिस्फाइड कस्टमर। और इस कोविड-19 में दे आर मोर सेटिस्फाइड, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि बैंकर, पब्लिक सेक्टर बैंक ने बहुत हेल्प करी है। इट इज नॉट ओनली एसबीआई, इट इज अदर बैंक्स आल्सो फोर फ्रंट पे गए हैं, हर जगह कस्टमर्स की हेल्प की है, कस्टमर ने भी उनको पूरा कोऑपरेट किया है। तो ऐसे केसेस मुझे तो, मेरी तो नजर में आए नहीं, लेकिन डेफिनेटली सर जो 48 मंथ्स का है, पहले 12 महीने मॉरिटोरियम है, 36 मंथ रीपेमेंट है, तो फिर हमारे पास ही रहना पड़ेगा, टेक ओवर का चांस कम है। ये आपकी बात थी। नहीं सर, पीएसयू तो गुड है सर, पीएसयू तो गुड है, लेकिन सर जहाँ प्राइवेट बैंक से लोग सर बिल्कुल वो गलत तक आ चुकी है, और उसने उस टाइम क्या हो, उसको ध्यान रहा नहीं, और अल्टीमेटली उसने वो 20% ले लिया। अब सर वहां रेट चल रही है 11% की, और आपके यहाँ पर रेट सर 7.5 और 8% की, वहां सर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है सर, अगेन इट इज ए पॉलिसी मैटर, लेकिन सर आप लोग एक अपर लेवल पे बैठे हुए हो, अगर सर इसको कहीं लिख के भेजेंगे सर, जिस तरह से मोबाइल पोर्टेबिलिटी है या इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी है, इस तरह सर ये जो गारंटी पोर्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हो सकता है सर, हो सकता है, यू आर राइट, मे बी आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि टेक ओवर में आ जाएगी ये भी, इसमें कोई बहुत बड़ा हो सकता है, एक पॉलिसी बनी जाए ऐसा कुछ। हाँ वो एग्जैक्टली सर, मेरा पर्पज भी वही है सर, मेरा पर्पज भी वही है कि कहीं ना कहीं इस चीज गुड पॉइंट। हाँ जी सर अनूप सर, यस अनूप सर एक आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट ये है सर, ये जो 100 करोड़ के टर्नओवर की जो कहानी है 1920 की, सर स्कीम बिल्कुल क्लियर बोल रही है कि इसके अंदर जो क्लाइंट की अंडरटेकिंग है दैट इज सफिशिएंट, नंबर 1। आप क्लाइंट से मांग सकते हैं प्रोविजनल बैलेंस शीट, दैट इज सफिशिएंट। उसके जो सपोर्टिंग डाटा है, प्योरली सपोर्टिंग डाटा सर, दिसंबर तक की तो गारंटेड सबकी जीएसटी रिटर्न जा चुकी है, बड़ा सपोर्टिंग डाटा ये हो गया। सेकेंडली जो उसकी जो बैंक में क्रेडिट है, दैट इज आल्सो सपोर्टिंग टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर टर्नओवर। तो सर मेरा आपसे यहाँ रिक्वेस्ट है सर, क्या कहीं पर भी सर हम इसमें सर सीए सर्टिफाइड मांग रहे हैं क्या सर? इसमें आप अगर देखोगे, जो बैंक, ज्यादातर बैंक में एक सही फॉर्मेट है जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है। उसमें हमने किसी से सीए सर्टिफाइड ऑडिटेड बैलेंस शीट, हमने प्रोविजनल अंडरटेकिंग या टर्नओवर इन द अकाउंट के हिसाब से कंसीडर किया है। और तो सर जी बताएं सर, आपके भी कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर सर। नहीं, बैंक्स ने इसके लिए कोई सीए सर्टिफिकेट या वो कुछ नहीं मांगा है। इट इज ओनली द क्रेडिट सबमिशंस, और जो उसके जीएसटी रिटर्न्स हैं, दे वर गुड टू सर्टिफाई दैट हिज टर्नओवर इज लेस देन 100 करोड़। तो सर मेरा सभी सीए साथियों से रिक्वेस्ट है सर यहाँ पर कि जो प्रोविजनल बैलेंस शीट्स जो क्लाइंट की चाहिए, बैंकर्स मांग रहे हैं, आप सिर्फ क्लाइंट को एजुकेट ये करिए कि उस प्रोविजनल के साथ में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो दे दीजिए, वो जस्टिफाइड करेगा। एक और चीज है वहां पर कि क्वार्टरली टर्नओवर या मंथली टर्नओवर लास्ट ईयर का आप दे देंगे और साथ में करंट ईयर दे देंगे, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपके फिगर उससे जस्टिफाइड करेंगे। नो डाउट यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे है कि आपने टर्नओवर दिया है 99.8 करोड़ या 99.9 करोड़ या 99.8 करोड़, तो नेचुरल सी बात है बैंकर्स को वहां कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि बैंकर्स की गारंटी आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आपके डॉक्यूमेंट कहीं भी डिफेक्टिव निकलते हैं तो बैंकर्स अपनी गारंटी को लॉस्ट कर देंगे। उस केस में गवर्नमेंट की गारंटी बैंकर्स के पास नहीं रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी सीए साथियों से
कि आप कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप दे दीजिए ताकि वो उसको प्रूव करे अपने आप के ऊपर कि लास्ट ईयर आपका क्या टर्न हो रहा था। एक और चीज इसमें जितना मेरा मानना है, जो मैं समझ पा रहा हूँ इस स्कीम को देख के, क्योंकि मैं बहुत अटैच्ड हूँ पर्टिकुलर इस लाइन से, कि लास्ट ईयर टर्नओवर भले आपका 200 करोड़ या 300 करोड़ रहा हो, ये कोई गारंटी नहीं है कि करंट ईयर में आपका टर्नओवर 200 करोड़ 300 करोड़ रहेगा। बस आपको करना इतना ही है कि करंट ईयर में अगर आपका टर्नओवर 90 करोड़ 80 करोड़ जो भी कुछ रह गया, थोड़े बहुत सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो आपको लगाने पड़ेंगे। और मेरे हिसाब से बेस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है दिसंबर तक की आप जीएसटी रिटर्न दे दीजिए। जब 9 महीने का टर्नओवर आपका सर्टिफाइड हो गया तो अगले 3 महीने के टर्नओवर सर्टिफाइड करने में बहुत ज्यादा जोर नहीं आएगा। बैंकर्स जो मैक्सिमम वहां देखेंगे वो ये देखेंगे कि लास्ट ईयर टर्नओवर में आपका क्या ट्रेंड था। जो लास्ट ईयर आपका टर्नओवर था दे विल चेक क्वार्टरली, और लास्ट ईयर के टर्नओवर में क्वार्टरली क्या आपका ट्रेंड था, मोटा मोटी वही ट्रेंड वो चेक करते हैं कि आपका करंट ईयर में क्या रहा। सही नहीं सर, एम आई करेक्ट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। हाँ बिल्कुल सर, मेरा भी यही मानना है सर, और ये शायद ये चीज सफिशिएंट है और बैंकर्स इस चीज को एग्री कर रहे हैं सर। सवाल सिर्फ यही है कि हमको भी प्रॉपरली बैंकर्स को समझाना पड़ेगा कि हम इस टर्नओवर को किस बिहाफ पे दे रहे हैं। हमारी केवल जिद नहीं चलेगी, हमने बोल दिया साहब ये मान लो, ऐसा नहीं है। जब हम सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देंगे तो बैंकर सर्टेन इस चीज को मानते ही मानते। सही नहीं सर? सर वन मोर क्वेश्चन सर, अभी प्रधानमंत्री जी ने रीवा के अंदर देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है, और एक लाइन उन्होंने यूज में ली है सर कि सोलर है तो श्योर है। और मेरा भी ये मानना है सर कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने के अंदर ये बड़ा कदम है कि जहां पर हम एनर्जी में अगर आत्मनिर्भर हो गए तो शायद बाकी की जो चीजें हैं वो अपने आप चल जाएगी। तो सर बीइंग बिग बैंकर ऑफ इंडिया, सर आप इसमें किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं सर? क्योंकि सर सोलर में मेरा ये मानना होता है सर, दो तरह के सोलर एनर्जी वाले हो गए सर, एक जो कैप्टिव कंजम्पशन में काम ले रहे हैं और एक जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को बिजली बेचने के लिए जो पर्टिकुलर यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो सर वहां पर सर आप लोगों की हेल्प बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहां पर जमीन होगी फार्मर की और मशीनरी होगी डेवलपर की। वहां पर सर अगर बिना कोलेटरल अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे लोन को तो शायद सर बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम कुछ कर रहे हैं सर, सही सर? सर हाँ, सोलर प्रोजेक्ट्स में ना अभी मेरे पास रिसेंटली टेहरी और इधर साइड के कुछ हिली एरियाज के प्रोजेक्ट आए हैं, तो हम उनके ऊपर काम करना हमने शुरू कर दिया हुआ है। और जहां आप कोलेटरल का कर रहे हैं, जो भी उस स्कीम में करता है कोलेटरल फ्री स्कीम है, तो उसके लिए इवन स्टेट ऑफ उत्तराखंड इसने भी कुछ गाइडलाइंस इशू करी हुई है। तो सोलर के ऊपर सर काम शुरू हो गया है। कल की बात है, शायद मेरे पास एक प्रपोजल अभी मैं उसके गो थ्रू टेहरी साइड का था। तो सर सोलर एरियाज में स्कोप है, क्योंकि पहले आई वाज पोस्टेड एट ले एरिया, तो वहां भी समर्स में जब होता है थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से ऐसा रहता है सनशाइन, तो एक दो प्रोजेक्ट मैंने वहां भी करा था, सोलर प्रोजेक्ट भी करा था और बाकी ग्रीनफील्ड वगैरह के करे थे। तो सोलर प्रोजेक्ट सर हमारी रडार के ऊपर है। बाकी जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी अगर आपके पास कोई आता है, जहाँ आपके किसी सी भाई के पास या हमारे किसी फेलो मेंबर्स के पास है, तो प्लीज यू कैन कांटेक्ट मी और मिस्टर परितोष, तो हम पूरी सारी इसमें हेल्प करेंगे। प्रोजेक्ट शुड बी वायबल, दैट इज द पॉइंट। यस सर, दैट इज डेफिनेटली सर। वो तो वायबल होगा तो ही आगे बढ़ेंगे, वरना तो उस पैसे को डुबोने के लिए कोई बैंकर भी आगे नहीं आएगा सर। इट इज परफेक्ट। अनूप सर यस सर, सोलर प्रोजेक्ट में सर हमारा बैंकर सर बैंक ऑफ बड़ौदा भी सर अपने आप एक ये तो हम मेरे ख्याल से आपके टैगलाइन भी यही है, इंटरनेशनल बैंक। तो सर आप कुछ कर रहे हैं सर इसके अंदर? सर हम तो, मैं बोलूं कि हमारा बैंक तो इसमें समझो आप पायोनियर ही है। हमारे पास तो स्पेशल स्कीम्स हैं सोलर की, और आने वाला समय जैसे आप बोल रहे हो सोलर एनर्जी का ही फ्यूचर इसी का ही है। और जहाँ तक अभी हमारे पास, जहाँ तक मैं देहरादून की बात करता हूँ, तो अभी एट प्रेजेंट तो हमारे पास सोलर एनर्जी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया, बट अगर आता है तो आई कैन एश्योर यू दैट बैंक ऑफ बड़ौदा विल डू इट वेरी वेरी एग्रेसिवली, बट द कंडीशन इज ओनली दैट प्रोजेक्ट शुड बी गुड, वायबल, इकोनॉमिकल। और तो सर कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर, क्योंकि आपका 1-to-1 ज्यादा कनेक्टेड है सर क्लाइंट से? हाँ, अभी आए हैं 2-1 छोटे प्रपोजल्स आए हैं हमारे पास, और अभी मसूरी के आसपास के हैं, तो लेट अस सी, क्योंकि अभी तो बेसिक पेपर्स ही भी आए हैं उनके। हम लोग के पास यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड रिलेशनशिप मैनेजर भी है who has undergone training for solar power projects के लिए, तो आई थिंक he will be able to help us out. सर ये जो कुसुम योजना आई है सर, इसमें कुछ है सर हमारे लिए स्पेशल?
रिपीट सैनी करेंगे सर, कौन सी ध्यान से योजना? आप कुसुम योजना, कुसुम योजना आई है सर, एक गवर्नमेंट की, जो पर्टिकुलरली सोलर के लिए आई है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है सर कुसुम योजना, कुसुम। सैनी सर कुछ आइडिया है सर? नहीं, इसका एट प्रेजेंट तो मेरे पास आइडिया परितोषी आइडिया नहीं, है इस नाम से तो नहीं, अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया नहीं है। जी 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 जी। आप क्या करके दो एंटरप्रेन्योर्स ने हम लोग को अप्रोच किया था, टिहरी के पास के ही हैं वो लोग, लेकिन वो अभी इनिशियल स्टेजेस में है। अभी कोई ऐसा मैंने कोई पर्टिकुलर स्कीम के नहीं है, दे आर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हु वांट टू सेट अप देयर ओन प्लांट। जी 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 जी। सैनी सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और जो लोगों को बहुत परेशान कर रहा है सर अभी भी, और ये समस्या सर डेली और बढ़ने वाली है सर मेरे ख्याल से, कि सर अभी सर जो वैल्यूएशन प्रॉपर्टी की आ रही है सर, एक सर प्रॉब्लम आई थी नोटबंदी के बाद, और एक प्रॉब्लम कोविड के बाद आ रही है सर एक्चुअली ना तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन डाउन हुई ना इंक्रीज हुई सर जो कुछ हो रहा है सर वो सिर्फ हमारा सर एक भावनात्मक रूप से ऐसा हो रहा है कि शायद प्रॉपर्टी की वैल्यू गई, और सर वैल्यूअर उसी भावना के पीछे, मतलब प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो ऑटोमेटिकली 25% या 20% डाउन करके दे रहे हैं। नो डाउट सर, Yes. जो पुराने जो Yes. प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां इंपैक्ट नहीं आएगा सर, वहां इंपैक्ट सिर्फ वहीं पर आएगा सर जहां उसको एनहांसमेंट चाहिए, क्योंकि एनहांसमेंट के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बहुत रिलेवेंट है, और जहां नए लोन है सर वहां पर भी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बहुत रिलेवेंट है। तो सर इसको हम किस तरह देख पा रहे हैं, क्योंकि वो ये तो जो डाउन आप करके दे रहे हैं। ये सर नहीं, जो एक आपके जो वर्ड होता है एलटीवी, लोन टू वैल्यू, सर इसमें Loan to कुछ value. रिलैक्सेशन हो रहा है सर सैनी साहब? नहीं सर, एलटीवी में तो अभी तो रिलैक्सेशन नहीं है, बट जो आपने जो पॉइंट रेज किया ना, ये कल ही पॉइंट रेज किया गया था, और ट्यूसडे को ही मेरी वैल्यूअर्स की 11 बजे मैंने मीटिंग रखी है इसी पॉइंट को लेकर, जो आपने बोला ना पॉइंट। जी। और क्या कर रहे हैं वैल्यूअर्स पता नहीं, यहाँ पे देहरादून में मैंने थोड़ा सा सिस्टम ज्यादा देखा है, आई हैड बीन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हो जाते हैं। मैं एक वैल्यूअर से बात कर रहा था, मैं के पास नहीं सर ये सर्कल रेट है, इनकम टैक्स का रेट है। मैं यार सर्कल इनकम टैक्स का रेट अलग होता है और मार्केट रेट हमेशा अलग होता है। तो इसी पॉइंट को लेके मुझे लगा था ये दिक्कत आई है एक दो जगह। रादर हमारा बैंक थोड़ा सा ना, पहले क्या होता था सर, 3 टाइप की वैल्यू लेता था। मैं हाउसिंग की बात करूंगा, जी जी मार्केट वैल्यू, रिलाइजेबल एंड डिस्ट्रेस। तो क्या किया है कि बैंक ने बोला है कि रिलाइजेबल वैल्यू के ऊपर करना है, तो इन्होंने क्या किया है कि काफी डाउन कर रहे थे वैल्यू, और एक कल मेरे भी संज्ञान में आया था। और करते हुए ट्यूसडे मींस डे, जो भी 2 दिन इसके बाद, जो ट्यूसडे कमिंग ट्यूसडे जो आता है, मैंने अपने ऑफिस में सारे वैल्यूअर्स की मीटिंग रखी है, और जो कंसर्न आपने शो किया वही कंसर्न मेरा है, मैं उनसे बात भी करूंगा। तो सर पॉइंट वेल टेकन, वी विल सी क्या कर सकते। थैंक यू वेरी मच सर, यही सर हमारा भी कहना ये, क्योंकि सर अभी जो वैल्यूएशन डाउन हो रही है ओनली बिकॉज ऑफ सेंटीमेंट। मैंने भी यही बोला, मैंने कहा यार वैल्यू जो डाउन है सेंटीमेंट्स की वजह से है, और कुछ वैल्यूअर्स की तो मैं वैल्यूएशन देखी, ये नहीं मैंने कहा उनको कि आप इन्फ्लेट करो या वो करो, लेकिन यही पॉइंट मैंने बोला। कहता सर कोविड-19 में ये रेट है, मैं इट इज ओनली टेम्पररी फेज, दिस इज टेम्पररी फेज, इससे लोगों का भला नहीं होगा, और इसीलिए मैंने ट्यूसडे को एक मीटिंग कॉल की। अनूप सर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं सर? हमने भी 1-2 नई वैल्यूएशंस में ये देखा है, लेकिन जैसे कि मैं ये मानता हूँ कि ये एंटायरली सेंटिमेंटल इफेक्ट है, और इन केस समझो कि अगर सपोज टुमारो कोविड वैक्सीन आ जाती है तो ये सेंटिमेंटल इफेक्ट एकदम से खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ इसी की वजह से आ रहा है, लेकिन हाँ एट प्रेजेंट जो वैल्यूअर्स हैं वो एक, जैसे हम रिलाइजेबल में हम जैसे डिडक्ट करते हैं, एक कोविड का परसेंटेज उसने लगा दिया अभी 10% कोविड रिडक्शन, ऐसे समझो आप। ये एंटायरली सेंटिमेंटल है, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि अगर वही प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है तब उस वैल्यू पे वो नहीं बेच रहा है उसको। तो लेकिन हाँ ये है कि जो हमने नई अभी 1-2 मंगाई हैं, जो मतलब छोटी प्रॉपर्टी पे तो इतना फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन बड़ी में 10% भी बहुत हो जाता है, तो वो सर हमने नहीं, देखा है। 10 नहीं सर 20% तक कम आ रही है सर, प्रैक्टिकली मैं 20% मतलब कम आ एक रही है सर। एग्जांपल दे रहा हूँ, 10-15 ऐसे ये कर रहे हैं इसमें, इस समय ये चीज है। तो सर थोड़ा लेकिन सा मैं समझता हूँ कि ज्यादा ये टेम्परेरी इफेक्ट है,
और इसका कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसी ही चीजें सुधरने लगेंगी ये इफेक्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगा। हाँ वो तो मुझे फील हो रहा है सर, दिसंबर जनवरी तक तो कहानी वापस बदल जाएगी वापस ये। अरे तो सर इस चीज का जो इम्पैक्ट है वो एसएमई में तो कम पड़ता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा वहां पर पड़ता है सर जहां पर वैल्यू बेस्ड होता है। जब मॉर्गेज लोन हुआ, अब मॉर्गेज लोन के अंदर वो आप जाते हैं प्रॉपर्टी का 50%, 60%, 70%, वहां सर इसका ज्यादा इम्पैक्ट आता है। अरे तो सर हाँ ये बात तो है, लेकिन अभी तक अभी इस फाइनेंशियल ईयर में मेरे पास अभी एबीएल का कोई प्रोजेक्ट आया नहीं है। बट हाँ ये सेंटिमेंटल है, कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश हुए हैं प्रॉपर्टी के। इट इज मोर बिकॉज प्रॉपर्टी में ये है कि स्पेशली टायर 2 टायर 3 सिटीज में तो ऐसा मार्केट प्राइस क्रैश नहीं हुआ है। टायर 1 हो सकता है कुछ हुआ हो, बट देहरादून जैसे सिटी में तो प्रॉपर्टी क्रैश नहीं हुई है कि हम ये कहें कि वैल्यूअर्स भी अपने सेफ साइड में रहते हैं कि कल को अगर से 3 इयर्स डाउन द लाइन अगर प्रॉपर्टी का कुछ सार्ब में या कहीं पे जाके हमें सेल करना पड़े, तब उनपे आरोप ये ना लगे कि आपने उस टाइम में बहुत ज्यादा इंफ्लेट करके दिया था। चक्कर ये पड़ता जस्ट है टू सर, बी ऑन द वैल्यूअर सेफ का कलम साइड चल वो अपना एक कोविड वो कर लेते हैं, सर चक्कर ये कोविड पड़ता है कि परसेंटेज कम कर देते हैं। सर चक्कर ये पड़ता है कि वैल्यूअर की कलम चल गई और यहाँ क्लाइंट का सर सब कुछ गया सर, उठा के हाँ। 20% जो ही कम दी वो उसको जो- वैल्यूअर्स भी थोड़ा सा सेंटीमेंट उनके थोड़े से वीक हैं, उनको जी ये जी मान के चलते हैं। जी 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 सैनी सर, यस सर। सर एक और रिलेवेंट क्वेश्चन सर, और ये तो सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आगे चल रही है अभी कंटिन्यूअसली, पर्टिकुलरली बिल्डर्स के लिए सर, क्योंकि एसबीआई का भी एक अच्छा खासा एक्सपोजर बिल्डर्स के अंदर सर बिल्डर सर 4 बार तक हो गए सर। पहला सर हुआ नोटबंदी, और फिर आया सर जीएसटी, फिर आया सर रेरा, और अभी आगे जनबंदी। जनबंदी का बड़ा इम्पैक्ट ये होगा सर कि जो मैक्सिमम जो लेबर थी वो माइग्रेंट हो चुकी है, ना लेबर अवेलेबल है, और सर जो रॉ मटेरियल था वो रॉ मटेरियल भी बहुत हद तक संकट में आ चुका है, और सेकेंडली सर बहुत बड़े वो कैश क्रंच के अंदर है। हालांकि सब जगह जवाब यही आता है कि मैक्सिमम जो लाइबल है इसके लिए बिल्डर खुद लाइबल है, क्योंकि तकलीफ वही हुई है जहां पर फंड डाइवर्जन हुआ है। जहां फंड डाइवर्जन नहीं हुआ है वहां तकलीफ कंपेरेटिवली कम है। लेकिन सर मेरा इसमें कहना सर ये है कि सर बिल्डर तो बड़ा आदमी होता है, उसका वो तो इफेक्ट कम होता है सर। इफेक्ट सर बेहतर है छोटे वो आदमी जिन्होंने सर अपनी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी लगा के वो फ्लैट ले लिया सर, वो बिल्डिंग बना रहा है 25-30 माले की, 40 माले की, अभी उसने छत डाली है 10 माले की केवल। मैं लेके गया अपनी वाइफ को, मेरा फ्लैट कहाँ पर है, वो 20वें माले पे, वो पता नहीं वहां पर वो 20वां माला डलेगा या न डलेगा मुझे भी नहीं मालूम, और मैं कंटिन्यूअसली आपको ईएमआई पे कर रहा हूँ, मैं उसकी ईएमआई पे कर रहा हूँ जिसकी मेरी छत डली ही नहीं है। तो सर बहुत मेरे ख्याल से सर बहुत ज्यादा हेल्प कुछ ना कुछ सर करके बैठना पड़ेगा सर आपको, क्योंकि लाखों करोड़ की इन्वेंट्री सर बेकार पड़ी है इंडिया में सर। यस सर सैनी सर, सर आपकी आवाज सैनी सर की आवाज आ रही है क्या? ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर सर आप सर सैनी सर आवाज आ रही है सर, प्लीज थोड़ा पास में, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है मुझे लग रहा है। हाँ जी सर, आ रही है अब क्लियर है? यस सर, थोड़ा सा लाउड हो जाए, क्लियर है? नेटवर्क का सर बहुत इशू है अभी। मैं हाँ, ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर वाज नॉट वीकर कंज्यूमर sentiments which lead to huge pile up of inventories। पीछे मैंने बिल्डर्स की मीटिंग ली थी और बिल्डर्स को मैं रिपीटेडली एडवाइस कर रहा हूँ कि प्लीज री लुक इनटू योर मार्जिन्स एंड क्लियर द इन्वेंटरीज। और आपने भी देखा होगा मार्केट में, मुझे तो देहरादून में कोई लग नहीं रहा कि किसी ने अपना रेट भी डाउन किया। तो अभी जनरली आर कॉशियसली गोइंग अहेड विद बिल्डर फाइनेंस। तो जो आपका सर पॉइंट है बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है, और कई जगह बिल्डर्स ने बिल्कुल ऐसे स्टैग्नेट करा हुआ है और इतनी इन्वेंटरीज फाइल अप हुई हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं बिल्डर से बात कर रहा था, मैं कहा अपने मार्जिन्स को प्लीज रीलुक, इसके बारे में सोचा कि बिल्डर्स को ही सोचना पड़ेगा। बैंकर्स उनको वही कर सकते हैं, एक सजेशन ही दे सकते हैं, बट आप लोग भी कुछ करिए इस मसले में। मुझे लगता है कि आपके भी तो कितने क्लाइंट्स बिल्डर्स होंगे, आप भी देखिए क्या किया जा सकता है। सर वो तो करने का सर मैं बताऊं सर बेस्ट तरीका तो वास्तव में यही है सर कि वो उस फंड को मिस यूटिलाइज नहीं करके, सर तकलीफ बेसिकली वही आई है जहां पर डाइवर्जन ऑफ फंड हुआ है। जहां डाइवर्जन ऑफ फंड्स नहीं हुए हैं वहां पर कंपैरेटिवली तकलीफ कम है, लेकिन जब फंड डाइवर्जन हो चुका है वहां बहुत तकलीफ आ चुकी है सर। अनूप सर। यस सर।
यस सर, प्लीज आप भी कुछ कहिए सर इसके ऊपर, बिल्डर फंड के ऊपर। देखो जी, इसमें जो मैं व्हाट आई पर्सनली फील कि पहले जो बूम था रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट के सेक्टर में, वो इस वजह से था कि डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो बिल्डर्स क्या कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट चलता था, इधर की जो भी उससे रिसोर्सेज से दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो जाता था। लेकिन अब डिमांड पे शॉक है, इन्वेंट्री बहुत ज्यादा अनसोल्ड पड़ी हुई है। तो अब ये वाला पार्ट जो है, जब जो आपने बोला, जिस जिस आदमी ने डाइवर्जन कर दिया वो प्रोजेक्ट स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डर के पार्ट पे क्या है कि थोड़ा सा मार्जिन्स पे, थोड़ा मार्केट को, थोड़ा सिचुएशन को देखते हुए, जो पहले तो जो अंडर गोइंग प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करें और अनसोल्ड एंट्री को पहले निकाला जाए। तब मेरे ख्याल से उससे क्या होगा, एक जो कस्टमर है जिसको फ्लैट नहीं मिल रहा है, जैसे आपको उसने ऊपर का फ्लैट दिखाया फॉर एग्जांपल, तो आपका भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तब जाके इस मार्केट में कुछ रिवाइवल और पॉजिटिव साइंस, और बहुत बेहतर पॉजिटिव साइंस आएंगे। इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए हमारे पास जो टायर 1 छोड़ो, आप टायर 2 टायर 3 जो सिटीज हैं, अभी बहुत डिमांड है वहाँ पर, हाउसिंग की बहुत डिमांड है। तो इसमें मेरे ख्याल से दोनों पार्ट से सोचना पड़ेगा इसमें, तब इसमें कुछ, और इम्प्रूवमेंट का तो इसमें इतना स्कोप है कि स्काई इज द लिमिट। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जैसे मुझे ही फ्लैट नहीं मिला तो मैं तो दूसरा फ्लैट छोड़ो, मैं अपने दोस्त को नहीं बोलूंगा कि फ्लैट ले। अब आदमी क्या सोच रहा है कि भले ही पैसा ज्यादा देना पड़े लेकिन मैं रेडी टू इन लूंगा। ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, नहीं सर, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। परितोष जी, शायद आप भी सर यहाँ पर देख रहे होंगे सर, पर्टिकुलर जैसे मैं जयपुर में रह रहा हूँ सर, मैं तो जो जितने भी लोग जो रह रहे हैं इनर साइड के अंदर, जो रह रहे हैं वॉल सिटी के अंदर, दे वांट टू शिफ्ट आउटसाइड। तो ऐसा नहीं है कि बिल्डर सेक्टर को बुरी तरह से बर्बाद ही हुआ है, इसमें बहुत सारा सेगमेंट ऐसा है, पर्टिकुलरली जहां पर विलाज बन रहे हैं, जहां इंडिपेंडेंट यूनिट बन रही है सर, जितने भी लोग जो बिल्कुल इनर साइड में रह रहे हैं, देहरादून के अंदर भी जो जो बिल्कुल जो 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 बहुत हाईली ऑक्यूपाइड एरिया है, लोग वहां से बाहर निकल के जो थोड़ा ओपन एरिया है वहां पर आना चाह रहे हैं। अगर वहां पर अगर बिल्डर काम कर रहा है तो शायद वहां माल बिक रहा है। यस परतोष जी। देखिए, जैसे देहरादून में भी जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, क्योंकि वहां पे पीपल हैव नाउ रियलाइज्ड कि कोई भी एपिडेमिक या कोई भी चीज होती है, वो जहां पर भी डेंसली पॉपुलेटेड लोग है वहां पे उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। सो पीपल आर इंटरेस्टेड इन मूविंग आउट टू प्रोजेक्ट्स, जैसे देहरादून में मसूरी रोड है, हरिद्वार रोड है, लेकिन जब तक बने यू डोंट मेक इट अफोर्डेबल। जैसे अभी अनूप सर कह रहे थे कि फ्लैट उनको भी नहीं अलॉट हो पाया है, तो नेचुरली बिल्डर्स ने जो अपनी जो थोड़ी सी इमेज उन्होंने अपने खराब की है, इफ दे कैन इम्प्रूव ऑन इट, आई एम वेरी श्योर पीपल वुड स्टिल लव टू मूव आउट ऑफ दिस डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज और खुले में रहेंगे। नाउ पीपल हैव रियलाइज कि एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो डेफिनेटली मूव करेंगे। बट ये है कि मार्जिन थोड़ा बिल्डर्स को भी अपने देखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो थ्रो अवे प्राइसेस पे आ जाए, बट देन थोड़ा सा मार्जिन को नेगोशिएट करें। आई एम वेरी श्योर ये जो इन्वेंट्री होल्ड किए हुए हैं ये बिल्कुल निकल जाएगी। इट टेक टाइम बट इट विल मूव। बस थोड़ा सा बिल्डर्स को भी थोड़ा और प्रैक्टिकल होके और अपने मार्जिन को रीलुक करना पड़ेगा। सर मैं यहाँ पर सर सभी, विमल जी, एक स्कीम आई थी स्वामी फंड दिसंबर 19 के अंदर, मैं उसको ब्रीफ कर दूं। अगर कोई बिल्डर अगर आपके ड्यू टू कैश क्रंच यदि उसका प्रोजेक्ट ठप पड़ा है, ये एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, इसमें एसबीआई इसके अंदर लीड कर रहा है, इनका एक अलग से वेंचर फंड बना है, वो बहुत अच्छा खासा इसके अंदर लीड कर रहा है सर। ये क्या क्या बोलता है सर, ये कि अगर उस बिल्डर का 30% काम पूरा हो चुका है, मिनिमम 30% उसका काम पूरा हो जाना चाहिए सर, उसका जो 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर रेरा कारपेट एरिया नहीं होना चाहिए एक फ्लैट का, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। एक फ्लैट का उसका जो एरिया है वो 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर कारपेट एरिया नहीं होना चाहिए, इस पर रेरा, यानी अपने आप में एक इनहेरिटेड चीज हो गई कि वो रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर वो रेरा अप्रूव्ड नहीं है, रेरा अप्रूव्ड अगर नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट वहां पर एलिजिबल नहीं है। वन मोर थिंग, यदि वो मुंबई के अंदर है प्रोजेक्ट, तो उसके एक फ्लैट या एक यूनिट की वैल्यू 2 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि वो एनसीआर, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर या अहमदाबाद है, तो एक फ्लैट या एक यूनिट की वैल्यू 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा सब जगह पे, जिसमें देहरादून भी आ गया, जहां मैं जयपुर रहा हूँ वो भी आ गया, एक यूनिट की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो इसके अंदर अच्छा खासा फंड अवेलेबल है। अभी तक जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, वो इसमें अलॉट किया है 25,000 करोड़ रुपया, और आउट ऑफ 25,000 करोड़ सिर्फ 8 या 9,000 करोड़ अभी सैंक्शन हुआ है। अभी इसमें बहुत गुंजाइश बाकी है। और पर्टिकुलरली
चाहे वो अकाउंट एनपीए हो चुका हो, चाहे वो अकाउंट एनसीएलटी में जा चुका हो, और वो बिल्कुल प्रोजेक्ट ठप पड़ा है ड्यू टू कैश, ये उन लोगों के लिए अवेलेबल है। इन लोगों की, ऐसे लोगों के लिए स्कीम बहुत कम आती है, तो ये उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट एनपीए हो चुका है या एनसीएलटी में जा चुका है, उन लोगों के लिए स्कीम है ये। और फंड्स की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, इसमें एक खास बात ये है कि जितना भी नया फंड आएगा, नया फंड जो यूज होगा दैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डअप टू ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। पुराना पेमेंट उससे नहीं होगा, ना ही पुराना लोन टेक ओवर होगा। यदि आपका कहीं पुराना लोन चल रहा है तो वो उससे फर्स्ट चार्ज ले लेंगे, सेकंड चार्ज रहेगा पुराने बैंकर के पास में, उसको पेमेंट नहीं करेंगे। जहां पर भी लोन चल रहा है पीएसयू से, सारे पीएसयू के अंदर एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट हो गया, जहां काम यही है कि वो टाई अप करे उस एसबीआई फंड से और उनको फर्स्ट चार्ज देके, ताकि वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो सके। हाँ, थोड़ा बहुत रेवेन्यू शेयर हो रहा है अब यहाँ पर, पहले बिल्कुल रेवेन्यू अलाउ नहीं था, लेकिन अब थोड़ा बहुत रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सेकंड चार्ज वाले बैंकर से थोड़ा बहुत रेवेन्यू शेयर होगा, टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ओनली, उससे ऊपर रेवेन्यू शेयर नहीं होगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है इसकी ओनली 12%। अगर 12% पे बिल्डर को लोन मिल रहा है तो अपने आप में बड़ी संजीवनी है ये, क्योंकि बिल्डर को तो मानते ये है कि 18-19% पे अगर मिलता है तो वो भी बहुत सस्ता लोन मिलता है। तो 12% पे लोन मिल रहा है स्वामी फंड के अंदर, तो मेरे ख्याल से अगर आपके किसी क्लाइंट बिल्डर हो, 30% काम कंप्लीट हो चुका हो और वो कैश क्रंच के अंदर है, ड्यू टू केस उसका प्रोजेक्ट ठप पड़ा हो, तो ये क्या बढ़िया स्कीम है। वन मोर थिंग, जो सबऑर्डिनेट डेट के लिए स्कीम आई है 20,000 करोड़ रुपए की, मैंने पहले भी कहा था आपको, ये आ चुकी है। जो 3 लाख करोड़ रुपए इस क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर है, वहां तो कंडीशन है कि आपका अकाउंट किसी भी कीमत में SMA 2 या एनपीए नहीं होना चाहिए, यानी वो अप टू SMA 1, यानी इट मे बी ओवरड्यू ओनली अप टू 60 डेज। अगर वो 60 दिन से ओवरड्यू हो गया, आप इस स्कीम से बाहर निकल गए। इनके लिए आई है सबऑर्डिनेट डेट की स्कीम। ये स्कीम आरबीआई दे चुका है, बैंक्स 2-4 दिन में बाहर, 5 दिन में इस स्कीम को बाहर ले आएंगे। इस स्कीम की 2 खास बात है, 31 मार्च 18 यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट थी, 29 फरवरी 20, और वहां पर इंपॉर्टेंट है 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 को आपका अकाउंट मस्ट बी स्टैंडर्ड। उसके बाद यानी फाइनेंशियल ईयर 1890 या फाइनेंशियल ईयर 1920 में अगर वो आपका अकाउंट एनपी हो गया या वो SMA 2 में आ गया, उनके लिए स्कीम आई है। नट सेल में हम कह सकते हैं कि ये स्कीम किसी भी मुर्दा को जिंदा करने के लिए है। जो अकाउंट एनपी हो गए 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, उन लोगों को भी यदि फंड प्रोवाइड हो रहा है तो एग्जैक्टली हम यही कहेंगे कि ये मुर्दा को बाहर निकाल के जिंदा करना है। और जितने भी जिंदा लोग हो गए, शायद वही इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें जो फंड मिलेगा वो मिलेगा उनकी कैपिटल जो उन्होंने लगा रखी थी, उस कैपिटल का 15% या 75 लाख, विच एवर इज लोअर, यानी मैक्सिमम जो कैपिंग हो गई वो हो गई 75 लाख की। इस हमारी क्रेडिट गारंटी स्कीम में मैक्सिमम कैपिंग का 5 करोड़ की, और वहां पर मैक्सिमम कैपिंग हो गई 75 लाख की। लेकिन वो बड़ी कैपिंग है सर, जो अकाउंट पहले एनपी हो चुका है, एनपी अकाउंट को भी यदि फंड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी हेल्प होगी वो एमएसएमई के लिए। तीसरी चीज जो आने वाली है, दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वो आ रहा है 50,000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड्स। ये जो दोनों स्कीमें हैं, ये दोनों स्कीम इंटरेस्ट बेयरिंग है, और हम अच्छी तरह समझते हैं इंटरेस्ट बेयरिंग का मतलब ये हो गया कि हम कमाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू पे इंटरेस्ट। लेकिन जो 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है वो आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन। और जब कैपिटल इन्फ्यूजन आएगा तो हम समझते हैं कि जो कैपिटल इन्फ्यूज करेगा वो हमसे शेयर तभी ले पाएगा जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट के अंदर तो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए बाउंडिंग हो गया वो। लेकिन कैपिटल इन्फ्यूजन के केस में वो हमारे ऊपर बाउंडिंग नहीं होगा। तो वी होप कि शायद जल्दी ये स्कीम मार्केट में फ्लोट होगी, और जब ये स्कीम आएगी तो शायद बहुत बड़ा हमारे लिए वरदान होगी, हमारे एमएसएमई के लिए। तो हम कंटिन्यू वॉच रखें इसके ऊपर। अभी तक हमारे सब सीए साथी ये माने कि अभी स्कीम तो केवल स्टार्ट हुई है, और जो 31 अक्टूबर की डेट दी है गवर्नमेंट ने, सिचुएशन देखते हुए इट माइट बी एक्सटेंड। ऐसा नहीं है कि कोई डेडलाइन हो चुकी है, लेकिन फिलहाल हम यही माने कि 31 अक्टूबर तक इस अपॉर्चुनिटी को जिसने एनकैश कर लिया उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। सैनी सर, सर एक मैं मैसेज चाहूंगा सर बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन आंसर सेशन, आपके लिए, आपसे सर आपका क्या मैसेज है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, किस तरह सर हम हाथ से हाथ मिला के आगे इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं और मिलकर काम करें। यस सर। मेरा सर आपको सर यही मैसेज है, अच्छा इनिशिएटिव लिया आप, तो इट इज अ लेट इनिशिएटिव। मुझे भी जहाँ काफी साल डेट तो हो ही गया यहाँ पे आए हुए देर, इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अगर ऐसा ही इनिशिएटिव लेते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव अभी नहीं, टाइम टू टाइम हमें करना चाहिए, आफ्टर 3 months और 6 months।
तो और उसके अलावा मैं अपने सीए साथियों को अक्रॉस उत्तराखंड एक मैसेज दे दूंगा कि स्टेट बैंक ने जो थोड़ा सा अभी चेंजेस करी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि एसएमई बिजनेस को फोकस करने के लिए, ताकि कस्टमर को धक्के से धक्का, एक स्टेट बैंक की जो मैं खुद मानता हूं क्योंकि आई हैव वर्कड अक्रॉस कंट्री, की इमेज थोड़ी ठीक नहीं थी एज पर कस्टमर सर्विसेज कंसर्न। इसको और इंप्रूव करने के लिए, हाई वैल्यू कस्टमर्स को और अच्छी सर्विस रेंडर करने के लिए हमने कुछ ब्रांचेस आइडेंटिफाई की हैं। जैसे हमने देहरादून में एक ब्रांच आइडेंटिफाई की है एसएमई राजपूत, वो सिर्फ एसएमई का ही काम करेगा और वहां पे क्वालिटी का स्टाफ लगाया जिनको अच्छी नॉलेज है, और वहां पे फुटफॉल बहुत कम रहेगा, 4-5 कस्टमर्स रहेंगे ताकि मेरे एसएमई कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही हमने रुड़की के अंदर आइडेंटिफाई की है एसएमई रुड़की ब्रांच, ऐसे ही हरिद्वार में की है एसएमई रानीपुर हरिद्वार। इनको हम और कोई टारगेट नहीं देते, कोई कार लोन का नहीं, होम लोन कुछ नहीं देते, हम इनको कहते हैं कि एसएमई कस्टमर्स के साथ एसएमई कस्टमर की हर नीड्स को एंड टू एंड पूरा किया जाए। अगर एसएमई कस्टमर आपके पास आता है तो उसका पूरा का पूरा रखो। और मैं अपने साथियों को यही कहूंगा, सीए साथियों को, कि अगर आप हमारे पास नहीं आते, कम से कम इन आइडेंटिफाइड ब्रांचेस, जैसे ऋषिकेश में करी है एसएमई एलजे रोड ऋषिकेश, ऐसे ही एक करी है रुद्रपुर में हल्द्वानी साइड की तरफ एसएमई रुद्रपुर, एसएमई काशीपुर और एसएमई बाटियो पड़ाव, 7 ब्रांचेस। और 7 ब्रांचेस का हमने नोडल ऑफिसर्स हमारे मिस्टर परितोष सिंह है, आपने देख ही लिया होगा, ही इज वेरी अडेप्ट, इज वेल वर्स्ड विद ऑल द सिनेरियो। और हमने ना टाइम टू टाइम, मुझे लगता है अब 3-4 महीने में हमने कम से कम 4-5 वेबिनार कर चुके हैं अपने कस्टमर के साथ। हम अक्सर कस्टमर से बातचीत करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हमने ये इनिशिएटिव लिया है तो इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। आप प्लीज हमें कुछ अच्छे से कस्टमर रेफर कीजिएगा, लीड्स दीजिएगा। और अगर किसी कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं मिल रही तो मेरा मोबाइल नंबर तो आपके पास आएगा। इट विल नॉट बी ए कंप्लेंट, it will be a suggestion, it will be a feedback, I will appreciate, I always love कि मुझे कंप्लेंट कुछ ऐसा भी मिले कि आपका वो बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा सर, ऐसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हम, अगर मुझे लगता है कि मिलके चलेंगे, उत्तराखंड स्टेट की भी डेवलपमेंट होगी, हमारे देश की डेवलपमेंट भी होगी। एंड थैंक यू। और मुझे लगता है कि जल्दी आप दोबारा से ऐसा ही प्रोग्राम आता है। सर हम मिलकर चलेंगे सर, पक्का सर, आप यकीन करिए सर, ना हम छोड़ेंगे आपको और ना हम छोड़ने देंगे आपको। दोनों काम बिल्कुल नहीं करेंगे सर, इस काम के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और सर ये संबंध सर, ये जो रिलेशन है सर ये लाइफ टाइम के होते हैं सर। ये रिलेशन कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते सर। और सर एक और सर मेरा ये मानना है, एक और एक हमेशा 111 होता है सर। एक और एक 11 बोलते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि आपकी जो भावना है, जो आपका इंटेंशन, जो आपकी अच्छी चीजें हैं, वो सर उसके साथ जुड़ती है सर हमेशा सर। अनूप सर काइंडली अनम्यूट सर। यस सर, आपका मैसेज चाहूंगा सर। मैं तो यही मैसेज दूंगा आपको कि इस तरीके की सेमिनार्स, वेबिनार्स, जो कि हमें एक कोविड ने एक नई चीज सिखाई है, बल्कि इतनी अच्छी, इतने सारे पार्टिसिपेंट शायद हम वैसे फिजिकली जोड़ भी ना पाते। इतने सारे सजेशंस, आइडियाज, ये सब हमें इस सब वेबिनार में मिल रहा है। और दूसरा यह है कि जहाँ तक मैं अपने बैंक की बात बताऊँ, हमारे यहाँ क्या है कि एसएमई ब्रांचेस हमारे यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। हर रीजनल ऑफिस में हमारे एक एसएमई सेल होता है, और रिटेल के लिए एसएमएस एक डेडिकेटेड एक स्टोर अलग होता है, जहाँ हम रिटेल्स के मॉर्गेज लोन्स वगैरह करते हैं। और जहाँ तक आपसे और बैंक का है, तो आपका तो समझो कि बैंक से पूरा हमारा साथ रहता ही है सीए का। आपसे 2-3 चीजें हमें जो है मिलती है, रेफरल्स आपसे मिलते हैं, और ज्यादातर मार्केट में आप रहते हो, तो आपको इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, किस तरीके के बोरोवर्स में क्या नए चीजें वो लेके आएंगे, कौन सी एक्टिविटी सही है चलेगी, ये सब हमें मिलने को मिलता है। और दूसरा एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो आपके लोगों के पार्ट पे शायद मेरा सजेशन है, कि जैसे जो इंडिया में जो एमएसएमई जो सेक्टर है, इसका एक बहुत बड़ा चंक है जीडीपी में, लेकिन अगर आप देखो तो पीएसयू बैंक्स के साथ में लेस देन 25% ऑफ एमएसएमई ही जुड़ी हुई है, बल्कि इससे भी कम होंगी, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर चंक अभी बैंकों से बाहर है। उसमें एक क्या है, थोड़ा बहुत आपको एक गाइड उनको करना है, छोटी छोटी चीजों से वो डर की वजह से उन कॉम्प्लायंस को पूरा, जैसे लाइसेंस है, कोई सर्टिफिकेट है, जैसे बैलेंस शीट की कुछ चीजें हैं, जीएसटी है, अगर ये सब चीजें जो जनरली पीएसयू मांगता है, अगर ये सब उनके पास हो, भले ही वो छोटा एमएसएमई हो, बड़ा हो, मेरे ख्याल से अगर वो जुड़ेगा, तो आप देखो कि
बैंकर्स का बिजनेस तो एक साइड में है, नेशन की इकोनॉमी दूसरी साइड में है, और उसका इंडिविजुअल अपना जो मार्जिन है, प्रॉफिट है, मॉनिटरिंग है, वो सब बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए। और इसका इफेक्ट आप लोगों को भी आएगा, पॉजिटिव इफेक्ट, और बैंकर्स को भी आएगा, और अल्टीमेटली हमारा जो क्लाइंट जो बनने जा रहा है, जो ऐसे एमएसएमई में ऑलरेडी चल रहा है, वो बहुत जल्दी राइज करेगा इससे। तो ये मेरा एक आप लोगों को सजेशन है, अगर आप इसमें थोड़ा कर सकें तो। बहुत सारा सेक्टर अभी हमारे पास आना बाकी है, अभी आया ही नहीं है उतना जितना बाकी है। सर हम पूरा करेंगे सर, थोड़ा नहीं सर, पूरा सहयोग करेंगे सर, इसीलिए तो हम साथ बैठे हैं सर, इसीलिए सर हमने मुहिम चलाई है सर, क्योंकि 200 सी 250 सी एक प्रोग्राम के अंदर आते हैं सर, और अल्टीमेटली सर क्लाइंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिना हमसे पूछे, वो सर हमको फीस दे या नहीं दे, लेकिन बिना पूछे हमसे काम नहीं करता है सर वो। यस यस, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप जो है मतलब उनके जो है डॉक्टर नहीं हो, उनके आप डायरेक्टर भी हो, बिल्कुल उनकी सर, इंडस्ट्री। सर सीए तो सर चीज ऐसी है सर, शमशान घाट में मिले ना, वहां भी कुछ पूछ लेगा वो कि सीए साहब से क्या करूं या क्या नहीं करूं, वो तो वहां तुरंत पूछ लेगा सर, उसको पता है कि ये बिना पूछे जवाब दे देंगे, फीस मांगते नहीं बेचारे ये लोग तो सर, क्योंकि उसको कई पता है। कई बार आप देखोगे जो जो इसमें छोटा वाला जो सेक्टर है ना, वो बिजनेस में बहुत बढ़िया होगा, मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस करा। उसके इंडस्ट्री जो अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप है बहुत बढ़िया होगा। कॉम्प्लायंस जो छोटी मोटी ये डॉक्यूमेंट कॉम्प्लायंस, वहां पे वो थोड़ा हिचकिचाता है। जी तो जी अगर वो चीजें, क्योंकि उसमें आप गाइड कर सकते हो उसे, क्योंकि ये कोई जब एक आदमी जेन्युइन बिजनेस कर रहा है तो कॉम्प्लायंस वाला पार्ट तो बल्कि मोर इजी है उसके लिए। जी जी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? एक अंकित जी ने हैंड रेज किया था, अंकित जैन जी, अंकित जैन जी, 2-3 हैंड रेज हुए थे बीच में। राजेश जी, राजेश जी बीच में 2-3 हैंड रेज हुए थे ना? हाँ जी, बीच में एक दो हुए थे। और जैन साहब एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा। यस सर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है जैसे हर सेक्टर का ध्यान रखता है, हर चीज हर व्यक्ति के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। अभी हाल फिलहाल में उसका डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगा। एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड बैंक ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए लॉन्च किया है, यस जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स, हर चीज पे वो पॉइंट्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप अपनी फ्रेटर्निटी में थोड़ा इनको भेजें। तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट प्रोडक्ट है। यस यस सर, यस सर, हमारी जो कमेटी है उसके थ्रू अभी आपका टाई अप हुआ है, और वो बीओबी Yes. कार्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आया है, और मैं भी सबसे या रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको समझे और उसको ले, क्योंकि क्रेडिट इससे कार्ड। इससे आप देख सकते हो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हमारा मतलब जो है बैंक को कितना ध्यान रहता है। हम यू आर लाइक अ फ्रेंड टू आवर बैंक। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आरितोष जी, आरितोष जी, हाँ बताएं। यस सर, आपका मैसेज चाहिए सर, फिर आगे चलेंगे, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है सर, आई विल टेक दोज क्वेश्चंस। सर आपका मैसेज चाहिए सर सीएस के लिए। सर सीए ब्रदर्स के लिए, ब्रदर्स सिस्टर्स के लिए बस यही मैसेज है कि आप कस्टमर की ग्रोथ के संग आपका भी ग्रोथ होगा, बैंक का भी ग्रोथ होगा, और जहां तक डाटा शेयरिंग के इंफॉर्मेशन जो आप लोग जो देते हैं उसको एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल बनाने की कोशिश करें, सो दैट इट हेल्प्स दी कस्टमर। क्योंकि जब रिन्यूअल वगैरह होता है या एनहांसमेंट के लिए जाता है तो हम लोग उसका पास्ट ट्रेंड जो कंपेयर करते हैं तो उसमें उसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। वॉट एवर प्रोजेक्शंस आर मेड एंड इफ इज एबल टू अचीव बाय मोर देन 85-90%, तो उसको उसमें स्कोर्स अच्छे मिलते हैं। तो मेरा बस रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि डेट कस्टमर्स, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके रियलिस्टिक फिगर्स हम लोग को दें, एंड इस कोविड सिनेरियो में व्हाट बेस्ट वी बोथ कैन डू आप हम लोग को सजेस्ट करें। और जब जब हम लोग की मीटिंग्स हो या जो लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मुझसे मिल सकते हैं, मैं देहरादून में जोनल ऑफिस में ही बैठता हूँ फर्स्ट फ्लोर में, तो व्हेनेवर दे फील लाइक कमिंग दे कैन कम ओवर। मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जी सर। सर अनूप सर, एक क्वेश्चन आपके लिए आया है, वेदर बीओबी हैज इंट्रोड्यूस एनी स्पेसिफिक लोन फॉर सीएस? आई थिंक नॉट, सिर्फ क्रेडिट कार्ड हुआ है, लोन के लिए मेरे ख्याल से कोई स्कीम नहीं है सर, अनूप सर? नहीं, इसमें स्पेसिफिक स्कीम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हमारे पास जो भी आप कंपनी में या कोई ऑफिस के लिए या कोई पर्सनल नीड्स के लिए आप ले रहे हो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो कर ही रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सर मेरे ख्याल से नहीं है सर, मेरे ख्याल से स्पेसिफिक सीए के लिए कोई स्कीम नहीं है।
लोन की। पहले हमें पहले देखना है कि सीए की रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर व्हाट पर्पस। ओके अगर आपको मान लिया फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, सीए को हाउसिंग लोन चाहिए, जी that is available. CA wants to do some business, he wants to erect some office, he wants to construct some building, it is available. ओके ओके सर। सैनी सर एक क्वेश्चन आपके लिए है सर। सर सैनी सर अभी प्रॉब्लम जो हो रही है सर कि जैसे आप लोग तो बहुत बड़े हैं सर, जो छोटी एनबीएफसी है पर्टिकुलरली अनरेटेड एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज सर, वो Yes. बहुत संकट में है सर, क्योंकि उनके क्लाइंट ने भी उनसे मोरेटोरियम लिया है सर, और मोरेटोरियम उनसे लेने के बाद में वो लोग भी कैश क्रंच में आ चुके हैं। तो सर कुछ स्पेसिफिक सोचा है सर हमने इनके लोगों के लिए सर? सैनी सर अनरेटेड बेसिक एनबीएफसी का क्या सर आप जो कह रहे हैं, बाकी वो क्राइसिस में आ चुकी हैं। तो अभी एनबीएफसी जहाँ पे कर रही थी ना मार्केट, जो उनका टारगेट ग्रुप था, अभी स्टेट बैंक ने क्या करा है, अभी जैसे उत्तराखंड में एक क्रॉस इंडिया करा है, एक एफआई सेगमेंट बनाया हमारा। एफआई सेगमेंट, एफआई मींस फाइनेंशियल इंक्लूजन सेगमेंट, जिसमें अगर आप उत्तराखंड एक क्रॉस उत्तराखंड देखें तो हमारी 420 ब्रांचेस हैं, 420 के करीब है। 420 में से अराउंड 200 ब्रांचेस एफआई में चली गई हैं। एफआई में चली गई हैं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो डाउन द लाइन हो सके। लेकिन जो एनबीएफसी का है, एनबीएफसी भी अभी क्राइसिस में है, लेकिन जो हमारी लिंकेज है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह, इनके साथ हमारी अच्छी लिंकेज है। और जहां पे एनबीएफसी का टारगेट था ना जिस सेगमेंट में, उसी सेगमेंट में आप शार्टली देखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो फ्लोट किया ना 1 जुलाई से एफआई सेगमेंट उत्तराखंड में भी, तो उसी जो सेगमेंट है दैट विल बी टारगेटेड। बट एज सच हमारे पास ऐसी अभी कोई पॉलिसी है नहीं कि हम एनबीएफसी को सपोर्ट करेंगे। ये तो मुझे लगता है कि वी हैव टू एस्केलेट, और गवर्नमेंट का ही कंसर्न है। तो सर मेरे ख्याल से वो जो 45,000 करोड़ की स्कीम जो भी मेरे ख्याल से भी आरबीआई ने फ्लोट नहीं करी है, के बाद जाके कुछ काम चालू हो पाएगा सर, क्योंकि वो जो स्कीम दी है वो स्कीम है ही अनरेटेड एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आरबीआई ने करी है फ्लोट। यस यस सर। अनूप सर कुछ कहेंगे स्पेसिफिकली इसके लिए सर? मेरे ख्याल से बीओबी का एक अच्छा खासा एक्सपोजर है एनबीएफसी के अंदर भी। हमारा एक्सपोजर इसमें अच्छा है, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पैकेज अभी जो नया आने वाला है गवर्नमेंट से, इसके बाद इस सेक्टर को और भी बूस्ट मिलेगा अनरेटेड और माइक्रो फाइनेंस वाले में। लेकिन अभी भी जहाँ तक बैंक ऑफ बड़ौदा का सवाल है, तो केस टू केस बेसिस अगर सब चीज उसमें वायबल है, प्रोजेक्ट सब ठीक है, तो हमारा बैंक तो अभी करता है, वी आर डूइंग, अपन कर रहे हैं सर। ओके ओके सर। अरे तो सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर आपके लिए पर्टिकुलरली, बताएं। व्यक्तिगत सिचुएशन कोई किसी ने पूछी सर, ये है कि मान लीजिए मेरा लोन आपके यहाँ पर है और मेरा लोन परफेक्ट है, दैट इज स्टैंडर्ड, लेकिन सर मैं कहीं और किसी लोन में मैं गारंटर हूँ सर, आई एम गारंटर इन अदर लोन, और वो लोन एनपीए या एसएमए 2 में है, तो सर क्या मेरे 20% एनहांसमेंट में कोई इंपैक्ट आएगा इसके ऊपर? अरे तो सर अगर आप एज ए गारंटर हैं जी, तो जो आपकी जो सिबिल रिपोर्ट जो बैंक ने जनरेट की होगी उसमें वो रिफ्लेक्ट हुआ होगा, है ना, तो उसमें आपको लोन नहीं मिलेगा जीईसीएल में। नहीं सर, तो उसमें तो सर मेरे लिए कहा हुआ है ना सर कि मेरा जो सर जीईसीएल जो बोलती है सर, वो ये बोलती है कि मेरा खुद का लोन इट माइट बी स्टैंडर्ड और एसएमए 0 और एसएमए 1, दैट्स ऑल सर। वो कहीं भी नहीं बोल रही कि अगर मैं कहीं गारंटर हूं तो वहां पर भी वो स्टैंडर्ड होना चाहिए या एसएमए 2 नहीं होना चाहिए। अरे तो सर हाँ, मैं एक बार इसको मैं चेक कर लूंगा। मैंने आप जिनका भी ये क्वेश्चन है, ही कैन कॉल मी ऑन मंडे। ओके मैं सर, एक बार चेक कर लूंगा। ओके सर। अनूप सर, हाँ अनूप सर, क्वेश्चन ये है सर उनका कि जो खुद का मेरा लोन है दैट इज स्टैंडर्ड, मैंने कहीं और गारंटी दी हुई है, जहां मैंने गारंटी दी हुई है वो एसएमए 2 में या एनपीए में है, तो सर मेरे ख्याल से जीसीएल में मेरे 20% के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर सर। नहीं, मेरे ख्याल से इस केस में नहीं होना चाहिए, इस केस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर तो आपकी वाली कैपेसिटी आपके टाइटल पे मिल रहा है जी। लेकिन क्या है कि इस केस में एक समझो कि बैंकर्स के लिए एक क्वेश्चन वाला स्टेप तो आ ही जाता है जी। ये एक चीज रहती है। जी जी। अच्छा, कुल मिला के मेरे ख्याल से इसमें एक वर्ड और दिया है ड्यू डिलिजेंस,
मेरे ख्याल से कहीं उसके अंदर हो सकता है कवर हो जाए, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस में एक वर्ड दिया ड्यू हुआ है। डिलिजेंस में यस, वही जो क्वेश्चन की मतलब कि जैसे एक एक पार्टी और वो आपका गारंटर है एंड ही इज डिफॉल्टिंग समवेयर। अच्छा, और ऐसा नहीं है, बैंकर्स आप देखोगे कि डिफॉल्ट को हम बहुत पर्टिकुलरली मेटिकुलसली एनालाइज करते हैं। अगर वो क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट है तो हम उसे छोड़ देते हैं, और कोई चीज का है तो हम उसका वेवर ले लेते हैं, डेविएशन ले लेते हैं। ऐसे हम डिफॉल्ट को ऐसे एकदम से कंसिडर नहीं करते। लेकिन क्या है कि ड्यू डिलिजेंस का एक मेजर पार्ट तो ये है ही। हाँ मेरे ख्याल सर वही जाके कवर हो जाएगा, वो ड्यू डिलिजेंस में आके वो कवर हो जाएगा, अदरवाइज तो ये कहीं और कहीं कवर नहीं होता। हाँ सैनी सर, सर सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर आपके लिए। सर ये ऐसा कुछ लग रहा है कि सर इस कोविड-19 के बाद में जो स्टार्टअप सेक्टर है सर, इसका कोई कंसोलिडेशन पॉसिबल है? लग नहीं रहा है सर कई लोग, मतलब कई लोग मिलके कंसोलिडेट करेंगे मार्केट को, ऐसा कुछ? ये सर स्टार्टअप सेक्टर में मैं देख रहा हूँ पहले से ही कोई बड़ा अच्छा वो नहीं रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। बीच में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आफ्टर कोविड मुझे लगता है कुछ ना कुछ सर कंसोलिडेशन होगा इसका, कुछ ना कुछ देयर विल बी समथिंग। क्योंकि जो मेरे अपना एक्सपीरियंस है स्टार्टअप सेक्टर के बारे में, स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी बीच में सर कोविड का इस पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ का है, इसके पहले मेरा मुंबई का एक्सपीरियंस है। तो स्टार्टअप सेक्टर स्टार्ट तो हुआ था अच्छा, ठीक पिकअप किया था, लेकिन कोविड-19 का इम्पैक्ट जैसे बाकियों के ऊपर है, इसके ऊपर भी सर ठीक ठाक है। इसका कुछ ना कुछ होगा जी आपसे। जी जी। अनूप सर आपको सोच पा रहे हैं इसके ऊपर? अनूप सर, अनूप सर, सर अनम्यूट, सर अनम्यूट, अनम्यूट। ओके, मैं ये सोच रहा हूँ इसमें कि आफ्टर दिस इम्पैक्ट ऑफ कोविड बहुत सारी चीजों में इस तरीके के चेंजेस आएंगे, और स्टार्टअप का कंसोलिडेशन ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है। और आप देखोगे कि कुछ इंडस्ट्रीज या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज भी सामने निकल के आई हैं कोविड में, जो पहले समझो जीरो जीरो गेन बिजनेस थे, अब वो बहुत ज्यादा अर्निंग बिजनेस बन गए। तो इसके इम्पैक्ट से, क्योंकि इस समय पे अगर एक छोटी यूनिट चलेगी और स्टार्टअप्स अगर 3-4 मिलके कंसोलिडेट करेंगे, तो मेरे ख्याल से सर्वाइवल वाला पार्ट जो है वो एक्सेल करने वाला, वो ज्यादा उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और अभी क्या है कि अभी स्टार्टअप वाला पार्ट जो है, मुझे लगता है कि उसका फ्यूचर तो ब्राइट है, क्योंकि जिस हिसाब से जो वर्ल्ड की जो इस समय कंट्रीज में चाइना वाइना के हिसाब से जो सिचुएशन बनी है, और गवर्नमेंट जिस हिसाब से अभी नए नए पार्क्स ला रही है, जैसे सोलर पार्क आपने बोला, एक अभी यमुना एक्सप्रेस पे टॉय पार्क बन रहा है कि ताकि हम टॉयज वगैरह बना सकें। तो उन सब में स्टार्टअप्स नई इन चीजों को काफी बढ़िया, इनको मैं समझता हूँ कि आगे फ्यूचर है इसमें। और मेरा भी ये इनका मान, कंसोलिडेशन, जी 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 सर, प्लीज प्लीज कंटिन्यू सर। इसमें ये भी हो सकता है कि मान लिया एक पार्ट में बनाने में हम 3 स्टार्टअप का कुछ रोल है, तो उनका कंसोलिडेशन भी पॉसिबल है। सर क्योंकि मेरा अगर भी ये बहुत मानना, लार्ज स्केल पे काम करना है तो हाँ 2-3 लोगों को वैसे ही जुड़ना पड़ता है। सर मेरा भी ये मानना है सर, ये आज मेरे को भारत की जो मोदी जी ने जो एक मुहिम चला दी है सर, ये मेरे ख्याल से बहुत कुछ काम करेगी, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है। अब दिवाली के ऊपर जो पटाखों की और जो जो यस जो यस, जो डेकोरेटिव आइटम है, अगर वो इंडिया वाले चल गए तो सर अपने आप के अंदर एक बड़ी क्रांति होगी सर ये। क्योंकि या चाइना के नाम से ही अब यूएस भी कतराने लग गया है, ब्रिटेन भी कतरा रहा है, सारे कंट्रीज चाइना के नाम से कतरा रही है सर। और अगर ये चल गई तो सर मेरे ख्याल से एक बड़ा बूस्ट देगी ये इंडिया की इकोनॉमी को। एक अच्छी कहानी, और एक इसमें अच्छी सच्चाई है। इसमें देखो कि जो अभी क्या है, जो चाइना का जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं इंडिया में हम बना रहे हैं, चाहे वो पटाखा हो, खिलौना हो, छोटे प्रोडक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, वो सब हम बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा हमें उसको, उन चीजों को गवर्नमेंट की साइड से या कंट्री की तरफ से अगर बूस्ट मिलेगी तो वो जरूर आगे बढ़ेंगे। सर मुझे भी ये लग रहा है सर, मुझे भी ये लग रहा है एग्जैक्टली। और ये चीज मेरे ख्याल से बहुत कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ा के जाएगी। सवाल सिर्फ ये है कि सर अगर हम इंटरनली बूस्टअप रहे तो ये चीजें बहुत आगे बढ़ रही है। जो मोदी का सपना है, और शायद अब तो सपना हमारा भी हो गया, टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। और सर अभी कल परसों भी सर एक मैंने स्टडी पढ़ी है सर, कि जो हमारी इकोनॉमी है अगर हम कंपेयर करें किसी और कंट्री की इकोनॉमी से, तो शायद हम एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये बीच में कोविड की प्रॉब्लम आ गई, कोविड बहुत कुछ नेगेटिव लेके आया है, तो सर बहुत कुछ पॉजिटिव लेके आएगा। सर बताऊं, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं बहुत परेशान था, और इस 2 घंटे के सेशन के अंदर मेरे अंदर सर वापस एनर्जी आ गई है सर। वो मुझे लग रहा था कि मैं शायद कहीं
कहीं तकलीफ में नहीं आ जाऊं, लेकिन 2 घंटे आप लोगों को साथ में रख के मेरे अंदर जो एनर्जी मैं अपने अंदर वापस ला पाया हूँ, यही सर अपने को आगे लेके जाएगी। और सर ये तो विमल जी भी जानते हैं सर, मैं सर 2 लाइन से मेरा जीवन चलता है कि यूं तन्हा बैठ कर ना देख, यूं तन्हा बैठ कर ना देख, हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। ये तो सर हमारे हाथों के अंदर सर चीजें अगर हम चाहेंगे तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, और एक मिला के सर हमेशा चीजें आगे बढ़ती रही है सर इसके अंदर सर। यस, अभी आप देखो ना, जैसे पहले हमारी जो फार ऑफ प्लेसेस में ब्रांचेस है, आज कोविड के बाद उन ब्रांचेस को हमें फिजिकली मिलना पॉसिबल भी नहीं होता था इतनी दूर दूर, यानी कि एक दिन एक ब्रांच में भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है पहाड़ में अगर, लेकिन आज आप देखो इट्स अ टाइम ऑफ सेकंड्स, वी कैन कनेक्ट टू एनीबॉडी। ये प्लेटफॉर्म पहले नहीं, ऐसा नहीं था, पहले नहीं था, पर हमने यूज ही नहीं किया, इसकी जरूरत नहीं आई। आज आपने कितने 170 पार्टिसिपेंट्स ऑलमोस्ट आप बता रहे हो इसमें जुड़े हैं, 170 आइडियाज विद इन 5 सेकेंड्स हमें मिल रहा है। ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, वो भी हमें समझना चाहिए कि कोविड ने बहुत सारी चीजें हमें सिखा भी दी हैं। और सर एक और चीज है सर, टूरिज्म के लिए लोग बोल रहे हैं सर कि अब टूरिज्म बढ़ेगा सर आफ्टर दिस आउटगोइंग दिस कोविड, एक बार जो ये निकलेगा सर, निकलने के बाद सर लोगों के दिमाग में हो गई कि जितना पैसा है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लो, भरोसा नहीं है जीवन के अंदर कब नई कहानी पैदा हो जाए, तो उसको लेके भी सर लोग इसको आप ऐसे देख सकते हो कि अगर कोई बर्ड थोड़ा सा उसके पंखों पे पानी लग जाए तो वो बैठ जाती है, लेकिन जब ये पानी उतर जाएगा तो वो बहुत तेज उड़ान उड़ेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ इंडियन इकोनॉमी की। यस कैंसर बेसिकली लोगों की प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो जाएंगी। यस मैं बता कि अभी तक क्या होता था कि जैसे मेरे फारफलंग के एरिया ना उत्तराखंड में, लाइक पिथौरागढ़ दिस दैट, तो मैं सोचता था मैं जा रहा हूँ, 4 महीने बाद जाता था, कभी ना भी जा पाता था। अभी यू वोंट बिलीव इट कि 3 दिन पहले मैंने मीटिंग करी है 250 ब्रांच मैनेजर्स, इंटरेक्टिव मीटिंग 250 में। मैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का वो है सॉफ्टवेयर, तो उसमें आई वाज इंटरेक्टिंग, दे वर इंटरेक्टिंग, और एक से हमने बात करी 250 ब्रांचेस से, तो बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए हैं पोस्ट कोविड-19 के। तो एंड दिस इज द वेरी पॉजिटिव जो आप बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था, देखो अभी मेरा टीए बच जाता है, पहले मैं क्या होता था, हमारे स्टेट बैंक में इंटरव्यू होते थे ना, वी हैव टू गो टू मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस। इस बार बैंक ने इतना पैसा बचा लिया ना थ्रू टीम्स, हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, थ्रू वीसी, और ये बड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट हुआ। अभी जैसे मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, यू आर सिटिंग इन जयपुर, हालांकि थोड़ी सी कनेक्टिविटी का फिर भी इशू है, बट एक यू कैन से कि आप जैसे कह रहे हो, अगर आप में एनर्जी आई तो हमारे में भी एनर्जी आ गई है। और अगर आप प्री कोविड-19 सिनेरियो देखो तो हमारे पास ही सारे सीएस बैठे रहते थे, मुझे लगता है हमारी मीटिंग भी नहीं हो पाई। तो देयर आर मेनी पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ दिस कोविड। सर अब सर वाकई में लग रहा है कि वर्ल्ड बहुत छोटा है सर। अब लग रहा है कि है, पहले लगता था कि कहाँ देहरादून, कहाँ पटना और कहाँ मुंबई, अब लगता है कि बिल्कुल एक बटन दबाया और ये मुंबई, ये पटना और ये देहरादून, ये सब मेरी क्लिक के ऊपर ही अवेलेबल है। अब ऐसे फील आने लगी इसके अंदर। अब ये न्यू नॉर्मल है, इसको हमें इसके साथ ही ऐसे चलना पड़ेगा। और एक आप देखो कि पहले एक कॉन्सेप्ट जो हम बिलीव भी नहीं कर सकते थे, वर्क फ्रॉम होम, आज ये बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट आ गया। वर्क फ्रॉम होम हम सोच भी नहीं सकते थे कि घर में है तो क्या काम करेगा, बट अब ये चलेगा और ये अच्छा चल रहा है, बल्कि बेटर चल रहा है। तो ही काम हो रहा है, अब तो घर में है तो ही काम हो रहा है सर। अब उल्टा हो गया उसके अंदर। और सर लेकिन सर मेरा सर एक यहाँ पर एक कहना हो रहा है सर, सबसे मेरा रिक्वेस्ट हो रहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं और दुनिया भी कह रही है सर कि बी केयरफुल। आप अपनी फैमिली के लिए सब कुछ है, हो सकता है सर गवर्नमेंट के लिए आप केवल एक नंबर है, अपने फैमिली के लिए आप सब कुछ है। बी केयरफुल, आप अपना ख्याल रखेंगे तो शायद किसी और का ख्याल रख पाएंगे। सब जगह ये है सर, इवन सर हम जब फ्लाइट में जब ट्रेवल करते हैं तो वहां भी लिखा हुआ होता है पहले खुद को बचाइए। यदि आप अपने आप को बचा सके तो आप किसी और को बचाने के काबिल रहेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि कभी नहीं पहुंचने से विलंब से पहुंचना अति उत्तम है। तो इतनी जल्दी भी मत करिए कि हम कभी पहुंच नहीं पाए। धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ऐसा नहीं है कि मतलब we have to पैशनेट, बिना पेशेंस के कोई चीजें पॉसिबल नहीं है, सब कुछ एक दिन में पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे काम करिए, मेहनत करिए, सर्टेनली हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सैनी सर, थैंक यू परितोष सर, थैंक यू अनूप सर, थैंक यू विमल जी, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच देहरादून। नाउ आई हैंड ओवर माइक टू एमओसी। थैंक यू जैन सर। थैंक यू सर। 1 मिनट प्लीज वेट करिएगा सर, 2 मिनट।
हाँ बोलिए बोलिए। राजेश जी। गुड इवनिंग सर। सर आपने जितने क्वेश्चंस रेज करे उसके बाद सर मेरा खुद का जो विजन है वो बहुत बढ़ गया है। बेसिकली सर यू हैव सो मच ऑफ एनर्जी। मेरे को लगा सर रजत शर्मा जी जो टीवी में आते हैं और जो सुनील चौधरी जी वो ज्यादा अच्छा बोलते हैं, बट आई थिंक यू आर मच मच मोर देन, मतलब मच मोर एंड मच बेटर देन देम। द वे यू नो एवरीथिंग, ये स्कीम आई है, इस स्कीम में इतना इन्वेस्टमेंट है, इस स्कीम में इतने पैसे हैं, इतने हजार करोड़ हैं। सर बेसिकली आई फील कि बाय हियरिंग यू मेरे को लगता है सर मेरा ये फील्ड नहीं रहा है सिंस इंसेप्शन। मैंने डायरेक्ट इंटरेक्ट्स और मतलब मैंने बेसिकली इंटरेक्ट टैक्स में ही एक्सपोजर रखा है, बट फाइनेंसिंग एज यू से इज आल्सो अनदर सेक्टर वेयर आई कैन थिंक ऑफ गोइंग टू। सर I really thank you, sir. So I start the conclusion proceeding, sir. Sir, I thank Shri B.L. Saini ji, DGM SBI Dehradun, and Shri Paritosh Raizada ji, AGM SBI Dehradun, and Shri Anup Sharma ji, AGM Bank of Baroda Dehradun, for sparing their valuable time and accepting our request for deliberating on the issues of stimulus package and giving us so much of briefing about the package, how we can go for, how we can have advantage for our clients. It's a very good exposure for us. I thank Dinesh sir for your expert advice, expert deliberations, and you are very much instrumental, sir, very much instrumental in holding this seminar and moderating the present seminar. I really thank you, sir. I really thank you from my innermost corner of my heart, sir. Thank you, sir. And I thank our chairman, managing committee members, and all the delegates who are present, who have got the benefit from this seminar. I thank everybody. Last but not least, I always thank Mr. Pulkit ji, who coordinated this technical session, because he is the backbone of our session. He takes care of each and every aspect of it. So I thank everyone for being here. Thank you. Have a nice day, sir. Thank you, sir. Thank you. Vimal sir, please unmute. Yeah, Dinesh ji. Everyone can unmute. Yes, sir, please. Vimal sir, please say something. हमारे स्पीकर्स के लिए सर, सैनी साहब भी सर, सर they are full of positiveness. नहीं, they're basically, देखिए, State Bank of India, Thank you so much, sir. These are very large institutions, and when I say कि इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर का इतना बड़ा रोल है, तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो दे आर द बिगेस्ट. और स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा, दे आर नॉट जस्ट द बैंक्स which are of a scale or a size confined only to India. They compete with the biggest banks of the world. तो उनके इतने senior officers with such a positive attitude and sparing their valuable time, क्योंकि अभी कोविड का हम लोगों ने पॉजिटिव की बात की वर्क के लिए, थोड़ा सा नेगेटिव ये भी हो गया है कि नॉर्मली हैड इट नॉट बीन कोविड तो सब आज छुट्टी पे होते, तो वी आर बेसिकली ईटिंग इनटू देयर पर्सनल टाइम. And they have been gracious enough to accept our invitation. और वैसे तो बैंकर्स का और सीएस का मुझे लगता है हम लोगों की वर्किंग ऐसी है कि हमारे यहाँ टाइम जो है वो हमेशा हम लोग we eat into our personal time to be on time for all other our work, but still being available on a otherwise holiday in the evening and being with us, assuring us of all the support, all the help, and all the positivity. I am really grateful to our panelists for the day. Thank you, sir. Thank you, Mr. Saini. Thank you, Mr. Raizada. सैनी सर, आपका एक बार वीडियो स्टार्ट कर दीजिए. Thank you, everybody. सैनी सर, वीडियो स्टार्ट कर दीजिए एक बार. हाँ, we would. सैनी सर, वीडियो स्टार्ट कर दीजिए एक बार. Thank you. कर दिए. Thank you. हाँ, तो दाढ़ी में. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everybody. रजत जी नहीं है क्या? रजत जी, हमारे वाइस चेयरमैन साहब रजनीश जी भी नहीं है क्या? नहीं, रजत जी तो हैं, रजत शर्मा जी हैं. रजत जी, अभी he was there. I think अभी शायद he has just left. please end the meeting. Right, ji, thank you. Thank you, sir. Thank you, everybody.